अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ विजिबल है बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद BVSS का, संजय जी आपका, for warm welcome and for providing this opportunity. So today's topic which is given to me is recent changes in GST. Be it like चाहे वो changes council meeting में हो, चाहे finance act में हो, चाहे कुछ recent जैसे कुछ circulars हैं जिसमें कुछ clarifications दी गई हैं, कुछ changes की जो कि council में दिए गए थे. So we're going to discuss about that. Now जब हम changes की बात करते हैं GST में, तो एनी टाइम स्लॉट इज लेस, क्योंकि जीएसटी में चेंजेस इतने होते हैं कि आप उसको कन्फाइन किसी भी टाइम लिमिट पे नहीं कर पाएंगे. बट स्टिल, एज वी आर मार्किंग 4th year of GST on 1st of July, and with this drafted law, like in whatsoever manner it is drafted, like we have seen a lot of criticism of this law rather than praising few provisions. I guess there are only few provisions which are praiseworthy. But apart from that, this law is being criticized a lot. आपको सबको पता है कि with the intent when this law was introduced, or we can say to retool or restructure, and we can say it was the biggest economic reforms in taxation, especially in taxation. Very few good concepts like e-invoicing, e-way bill is being introduced. But the main important sections related to ITC, if you see there is no establishment of GST tribunals, and you have seen, I would say weird judgments or weird rulings of advanced rulings as well, in which the jurisprudence have become a joke. I should not be using these harsh words for these kind of authorities, but this become important because when some of the rulings which we see, or in a manner it is being presented, it's not really good for a law to be, it should be interpreted in a good manner. And apart from it, there is a lot of tussle as well between central government and state governments with respect to the dividation of IGST portion, or maybe the other few aspects in which there is always a gap between central government and state government. Now with this, a lot of changes were brought in through Finance Act 2021. Now, many of the sections which you must have read till now, that the main section like supply, which is the key section from which the GST Act, I think, starts. And apart from that, a lot of sections related to ITC as well, or the, I would say, key or most litigative sections, section 129 and 130, are being amended. Now we will take only the key sections for discussion purpose. Now if you read the Finance Act, there are certain sections. If you see section 108 to 123 of Finance Act 2021, but if you see the bill, it was from clause 99 to 114, were for reserved for GST related budgetary amendments. And if we see the section 1 of that Finance Act, which says that the provision of 108 to 123 of Act shall come into force on the date as may be appointed by the central government by notification in official gazette. So whatsoever written in the Finance Act doesn't applicable itself. Rather, the government will have to come up with a notification as well to enact all the provisions which are provided in Finance Act or which are proposed in Finance Act. But till now, only one section, if we say section 50, which is being notified through a notification specifically, but still few judgments or few provisions which are being amended. So that need a discussion, or that need I would say we should not wait for that notification to come, but we should certainly reprocess few things if we are doing a business or it is affecting our business in a certain way. So with this, our first section which got amended was section 7.1. Now 7.1, there was I would say one subclause was inserted into that just to wide this main section of supply. Now what this newly inserted subclause says, it says that supply includes the activity or transactions by a person other than an individual to its member or constituents, or vice versa for cash, deferred payment, or other valuable consideration. Now you see why this section, or why this clause was inserted.
in this particular section. And apart from it, an explanation was also added. That explanation clarifies that notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, or any judgment, decree, or order of any court, tribunal, or authority, the person and its member or constituents shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activities of transaction inter se shall be deemed to take place from one such person to another. Now, to understand this, there is a little bit backing which is required for this. There was a judgment of Supreme Court in the case of State of West Bengal and Calcutta Club, in which the taxation related to, I would say, the principle of mutuality was discussed in that. That whether the services provided by all these clubs, associations to its member, whether it will cover within the ambit of principle of mutuality, in which taxation was not there in GST. Now, there were, I would say, unsettling position or unsettled jurisprudence was there. Like few of the officers have sent the notice as well to many clubs as well regarding the taxation, because there was an uncertainty to this. And just to clear that air, so they said that all those services between these clubs, like services provided by clubs to its member, will be taxable now. Now, to emphasize that this particular amendment is retrospective in nature and it will be applying from 1st of July 2017, that means if any such transactions have occurred previously, so a notice can be given to those particular transactions. Now, let's not go into the, I would say, the mindset of bringing retrospective amendments, but that is how it is. Apart from it, just to add, or just to, I would say, rectify this particular clause, there was a particular subclause in Schedule 2 of CGST Act as well, which kind of bifurcates that what sort of activity will be supply of goods or supply of service. So there was a specific subclause AA when it was inserted. So the paragraph 7 was deleted, which said that supply of goods by unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment, or other valuable consideration will be treated as supply of goods. Because when the main activity, or I would say the main activity, was covered within the ambit of supply, so that's why there is no need to say that this will be the supply of goods or services. So that can be taken care of now through the main section itself. Apart from it, the important section, which is section 16 related to ITC, that also got amended. If you see the new subclause AA of section 16.2a, section 16.2, one subclause was added, AA, which says that if you are buying goods from your supplier and that supplier have not furnished the GSTR1 in which he will be stating his outward supplies invoice wise, as specified in section 37 of the GST Act. Now, if he have not filed that return, so obviously it will not reflect on in your GSTR 2A as well. That means you will not be able to take the credit. If you see, there is a rule as well, Rule 36.4, which says, or which talks about taking the credit on provisional basis. That means the credit which is not reflecting in your GSTR 2A, you can still take 5%, up to the 5% of that proportional, or I would say provisional credit as well. But you see, there was no legal backing to that, or I would say no, this subordinate legislation did not have the main legislation or main backing which was given in the act itself. Now, this section is particularly inserted just to back that rule, or I can say that now Rule 36.4 has a legal backing. Apart from 36 rule, there is a Rule 2B as well, because initially when 36.4 came into force, so that provisional credit amount was initially 20%, then it got reduced to 10%, and now from 1st of January, it's 5%. And after that, GSTR 2B is also introduced, which is kind of a, I would say, updated version of 2B. Unlike 2A, which is a dynamic version in which your all the inputs or invoices get amended. Like if you download 2A today, it will be different. And suppose your supplier or vendor files the return thereafter, so it will get amended.
But GSTR 2B is not like that. GSTR 2B is something, there is a fixed date, suppose 13th of the next month. If your vendor have filed the return by 30th of the next month, it will reflect automatically in your 2A, or in 2B. If it is not, you cannot take the credit. That was given in the advisory, which was given by the GST website. Now, all just to bring everything at a common place, because as far as I see, they will reduce this 5% to 0%. That means 100% ITC, which is reflecting in 2A, will be the eligible credit. Now the burden is quite, I would say, on the recipient side more, because obviously you cannot track your suppliers that they are filing returns or not. But that was the amendment, just to make sure that all these rules have the legal backing. Now there is a, I would say, a pre-GST legal jurisprudence as well to support that. I cannot be punished, like this recipient cannot be punished for the acts done by a supplier. So there was a judgment as well, Arise India Limited versus Commissioner of Trade and Taxes Delhi, which was confirmed by Supreme Court as well, by rejecting the SLP which was filed by the revenue. But still, it is a long battle, I say, because a lot of litigation, a lot of writs are being filed in various high courts. Apart from that, another, I would say, game-changing amendment which was made in GST audit, it was related to GST audit, that somehow impact our community of CAs and cost accountants, which are authorized to do the GST audits. What do you mean by GST audit? When we talk about section 13(5), 35 subsection 5, which says that mandatory requirement was there to annual accounts audited by CA or cost accountant and reconciliation statement to be submitted for registered person whose turnover during a financial year exceeded the prescribed limit, which was 2 crore. Now that limit was extended for 18-19 and 19-20 up to 5 crore. But now that mandatory requirement have been amended now. Now it is not mandatory to get itself audited from a practicing CA or cost accountant. Now, subsequently, a change has been made in a section 44 as well, which speaks about annual return, which says that reconciliation statement is to be duly audited by practicing chartered accountant. Now, that procedure is, I would say, changed to a self-certification basis, in which now a assessee or taxpayer can himself self-certify. Now, in this they might change the forms as well. Now, how that will go, we still don't know about that. But a further amendment which is given that now commissioner is also having power that on recommendation of GST Council, he may also exempt a class of registered persons from filing an annual return. Now the responsibility of reconciliation is being shifted to taxpayers instead of the GST auditor, if we say it very clearly. Apart from that, the only notified section, which is section 51 of CGST Act, which talks about interest on net cash liability, despite of saying it very clear by Honorable Finance Minister in Parliament that it is the tax to be collected on net cash liability, despite of this fact and mentioning specifically in 39th of GST Council meeting, still officers were sending the notices related to interest on gross tax liability. A press release was also given to, I would say, clarify this thing, but still litigation was there. Now this particular proviso to section 51 has been amended now. It says that now it will be applicable on net cash liability. So now that litigation can, at least that issue is being settled now. Now, apart from that, an important section or explanation which is added to section 74. Now you see, when we read 74, which is related to when you tax not paid, short paid, or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized by reason of fraud. And if any proceedings under these sections are concluded, suppose any proceeding was initiated under 74 and it gets concluded. Now this explanation particularly talk about both the sections 73 and 74. So anything is concluded under this section. So all the proceedings which were initiated under some other sections related to penalty, or I would say detention, like section 122, 125, which is related to penalty, 129 and 130 is related to confiscation.
penalties or detention matters. Now this particular amendment is there to remove the section 129 and 130 just to make it a segregated, I would say, individual proceedings now. Now, even if your proceedings under 73 or 74 are getting concluded, and if any proceedings under 129 and 130 is also going on under those separate sections, so those will go on even if these proceedings have been concluded under 73, 74. Just to delink both the provisions, this amendment was brought in force. Apart from it, this is also, I would say, an important amendment, which is in section 75, subsection 12, which clarify the self-assessed tax. Now, it shall include the tax payable in respect of outward supplies furnished in GSTR 1, but not included in the return furnished in GSTR 3B. Now, what they have done is they have the ambit of the term self-assessed tax is proposed to be widened, meaning thereby now recovery can be initiated by officer even for the outward supplies, which is shown in your GSTR 1 filed under section 37, but you have not paid the tax under GSTR 3B. Now, this view is being taken in one of the judgment as well, in which writ petition was filed in the case of Kabir Realty Private Limited, in which Madhya Pradesh High Court said that when assessee have filed or self-assessed his liability in GSTR 1, GSTR 3B is mere a mechanism to pay the taxes. So that's why you have already self-assessed the tax. So that jurisprudence have the legal backing now. Apart from that, a very problematic section, I would say, for taxpayers, which is section 83(1), which talks about provisional attachment of banks or any property just to protect revenue in certain cases. Now, section 183, which provided that during the pendency of any proceeding which were under section 62, 63, 64, 67, 73 or 74, and if commissioner is of the view that just to protect the interest of government revenue, it is necessary to do so, he may in writing attach provisional any property including bank account belonging to the taxable person. Now, what change they have made? Now, they have widened the scope of 83. They have completely included the chapter 12, 14 and 15, which speaks about assessment, inspection, search, seizure and arrest, demands and recovery. And apart from it, they have included a taxable person or any other person specified in subsection 1A of section 122 as well. Those persons' accounts can also be attached now. Now, what section 122(1) says that any person who retains the benefit of a transaction covered under clause 1 to 6 or clause 9 of subsection 1 and at whose instance such transaction is conducted shall be liable to a penalty of amount equivalent to tax evaded or input tax availed of passed on. So these persons are also covered within the ambit of those persons whose accounts can be attached now. Apart from it, there is a change in the percentage of pre-deposit in the cases of detention matters in which you file an appeal against MOV 9 when your goods in transit get I would say inspected by the officer, wide powers given through section 68, in which they can check your e-way bill or other necessary documents. And if you get any order adversely, so you need to file appeal against that order. Now, what section is being amended that unless you file 20% of penalty, you cannot file an appeal. Now, practically, obviously, if we see the section of pre-deposit, which speaks about 10% of disputed tax liability, not the penalty. Now, they have said that you will have to submit the 25% of penalty amount as well. And practically, they don't release the goods until you pay 100% of tax liability and penalty. So obviously, when you go for appeal, by that time you have already paid the penalty, but they have mentioned it very specifically that unless you pay the 25% of penalty, you cannot go for appeal. Now, subsection 1A was also amended, in which the penalty have been increased from 100% to 200% in case the owner doesn't come when his goods are being detained. So he's not coming on an upfront basis that yes, these goods are mine. So in that case, the penalty is increased
Apart from it, the normal cases in which he is coming on upfront basis, the when goods are being attached, so he's saying that yes, these goods are mine. In that case, with normal cases also, penalty can be levied up to 200% just to release the goods. Now, apart from that, there was a section on which in which you could have released the goods on provisional basis upon executing the bond. Now that provision also being omitted now. Such provision is not there now, and you will have to pay the penalty through cash only now. Earlier, there was a, I would say, no time limit was given related to issuing the notice in all these cases when your truck or any transport get detained. So earlier, for penalty, they used to issue MOV 07 for passing any order in MOV 9 within a 7 days. So that time limits have also been given. Certainly, all these sections, this section 129 and 130 is being amended a lot to include all these provisions. And apart from it, they have delinked 129 and 130 because earlier when it was written that if you have not paid the taxes or penalty within 14 days, so your goods are liable to be confiscated. Now now they have delinked both the provisions. Now the latest provision is if you don't pay the tax within 14 days, your goods are liable to be sold now or disposed of in the manner if you don't pay the penalty. Apart from it, an important amendment was made in section 16 of IGST Act as well, which speaks about zero rated supply. Now, what changes have been made? Zero rated supply means when you supply your goods to SEZ developer or a SEZ unit, it should be only such supply should be only for authorized operation. Now, this provision is restricting. Second provision was given in which you had the exporter or the person making zero rated supply always had two options, either to export or zero rate supply with payment of tax or under the cover of LUT. Now they have said that the payment that with tax export is only restricted to notified supplies or only to notified categories. So that means by default, everyone have only option left with this LUT option. Now, such amendment, we all know why they have come up with this notification, or I would say change, because there are certain restrictions which are given in Rule 9610, which did not have any legal backing. And after that, Gujarat High Court judgment of Cosmo Films, in which the benefits were denied to advance authorization holders in a view of Rule 9610, and challenges have been made to Rule 96, the validity of Rule 9610. So now that particular rule has a legal backing that now this particular class, by class means the class which was exporting with payment of tax, is restricted to few of the categories now. Apart from it, they have said that if you have not realized the sale proceeds within the time frame which is given as per FEMA Act, after the expiry of that time period, within 30 days, you will have to return the refund which you have received. Now, there is a Delhi High Court judgment as well in this regard, which says that there is no correlation between Section 8 and Section 16, because Section 8 doesn't say that you will have to receive the funds. It says that reasonable steps have been made to realization and repatriation of the foreign exchange proceeds. Now, after that, certain measures were taken by the GST, or I would say CBIC, or Finance Ministry itself, through various notifications in which relaxations were given in respect of the compliances which are required, extended the time limits of IFF, and the amends the Rule 36.4 that it will be applied on a cumulative basis for 2 months. Due date of GSTR1, ITC 04 were also extended. All the returns were extended. Now, all these steps were taken on a suo motu basis wide various notifications which were issued on 1st of May 2021. Now, let's not talk about that because since it's a procedural, I would say, compliance aspect, so everyone must be aware of all these provisions. So all these rationalizations have made till the return of May 2021. After that, after a long break, we had a 43rd of council meeting as well, in which various decisions were taken. Now, on the basis of those changes, a lot of circulars were issued as well. If you say on 17th of June, a lot of circulars from 149 to 156 were issued,
Now we'll take these circulars one by one, but just to give you a reference, it was clarification regarding the applicability of GST on supply of food in Anganwadis and schools, and clarification regarding applicability of GST on activity of construction of road where considerations are received in deferred payment or annuity. Clarification regarding GST on supply of various services by central and state boards such as National Board of Examination. Apart from that, rate applicability on construction services provided to a government entity in relation to construction such as of a ropeway or on a trunky basis, GST on milling of wheat into flour or paddy into rice for distribution by state government under PDS public distribution system, GST on services supplied by state government to their undertaking or PSS by way of guaranteeing loans taken by them, and few of the parts of drip irrigation system which needed a clarity because due to some dispute of tariff heading. Apart from that, since we know that B2C concept in e-invoicing also going to be, I would say, start from very soon. So clarification in that respect is also being given. Now, just to clarify all these circulars, all these foods or midday meals which are provided by Anganwadis or school now are out of the ambit, or we can say these are exempt. And there is a National Board of Examination which conducts all the necessary exams. All the services provided by that organization and all the services which we provide to that organization are out of the ambit of GST. Apart from it, there is a major change, I would say, in a real estate sector in which we say that when developer promoter is charging GST or providing apartments to the landowner on which he is charging GST, so that landowner promoter could utilize the credit of GST, which is levied on those apartments, and the developer promoter shall be allowed to pay GST only if at the time before the issuance of completion certificate. So this clarification, I would say, this amendment was needed. There was a lot of chaos among the real estate stakeholders related to this. Apart from it, maintenance, repair, and overhauling services. If when in a word of shipping and vessels, when foreign vessels come into the India for any, I would say, for all the services of MRO. MRO means maintenance, repair, and overhauling. Now the rate, if we see in our other developing countries such as Sri Lanka or Singapore, so the rate was very less. But in India, it was 18%. So that rate is being reduced now to 5%. And apart from it, there is a amendment in place of supply provisions as well, in which it says that in B2B supplies, the MRO services in respect of ship and vessels would be the location of recipient of service. Now, this was also needed because it was to provide level playing field to domestic shipping who are providing MRO services. Apart from it, it clarified that if services are provided related to construction of a ropeway, you understand the ropeway in a hilly areas, which will attract the GST at 18%. So this rate will not include when this particular project is not related to commerce or for a business purpose, then this rate would not be applicable. But apart from that, the rate would be 18%. And CBIC have clarified the rates on sprinklers or drip irrigation system. This system is basically, it was introduced to save the water, and obviously a technique which is used in already developed countries. Now, if you see the notification 1/2017, which is a rate notification in which all the rates were introduced, it was amended and serial number 195B for sprinkler drip irrigation system included laterals, mechanical sprayers under heading 8424, which is of the rate of CGST is 6%. That means SGST rate is also 6%. That means total rate is 12%. The CBSE has clarified that intention of this entry has been to cover laterals, which is basically a pipe used for sprinklers, and such parts will be classifiable under this same heading only. So they have amended that thing that those parts will also be specified under this heading only, and rate would be 12%. Now, if those parts are for general use, then particular that heading will be used. But if it is for drip irrigation system, now the 12% rate will be applicable. Apart from it,
GST on guaranteeing loan services by state governments to PSUs. Now, if we see the entry 34A of notification 12/2017, which exempts service supplied by state government, central government, state government, union territory to their undertaking PSUs by way of guaranteeing the loan taken by such undertaking, or PSUs from banking, company and financial institutions. Now, CBIC have clarified that guaranteeing of loan by central or state government for their undertaking is also specifically exempted under said entry. This is mere clarification in this respect. If we see now the GST on milling services, by milling it means converting wheat into flour or paddy into rice for distribution by state government under public distribution system. It is not for a general purpose, but it is for public distribution system. Now, if we see the entry 3A or serial number 3A of notification 12, which is a exemption notification, it has clarified that if composite supply of milling of wheat and its fortification by miller, fortification means some other, I would say, material which is being used to convert that thing. Now, obviously, that is a composite supply when two or more goods are included in that. Now, if that particular material which is used for fortification or packing material does not exceed 25% of the composite supply, then it will be exempt from GST. But if it is not, or if it is exceeding that 25% of threshold, then GST would be leviable at 5% if such composite supply is provided to a registered person, being a job work service. Apart from it, the major change was related to on annuity payments. Now, if you see the history behind this, when this amendment, or I would say this particular exemption of annuity, which is paid by NHAI to all the concessionaires for construction of public roads, a particular exemption was given in 22nd GST Council meeting, which was held on 6th of October 2017. Now, they have given services by way of access to road or a bridge of payment is already exempt under GST. If we see the entry number 23 of exemption notification. Now, council said that all the annuities paid by NHAI during the operation and management phase to the concessionary at par with toll, it will be considered as if it is a toll only, and it will be exempted by way of access to road or bridge on payment of annuity. Now, after this council decision, a new entry and entry 23 was inserted through notification 32. And after this was introduced under heading 9967 and provided exemption to service by way of access or road payment of annuity. Now, the problem, or I would say discrepancy came, there is a separate notification which was given in which it was said that exemption will be given by way of access or road to bridge or on payment of annuity. But this heading was wrongly used, because if we see the heading 99667, which says that operation service of national highways, state highways, expressways, road and bridges. But the correct heading which have been used was 9954, which says that the service of construction of roads. But somehow it was not given, and many recommendation or clarification which was given by the Ministry of even Road Transport and Highways, that in which it was said that for implementation of GST provisions, no GST will be payment will be made for annuity payments. And after that, we saw a advance ruling as well in case of Nagar Mukundgarh Highways Private Limited, in which it was said that annuity payments received by concessionaires during the O&M phase are exempt in lieu of entry 23A. But the concessionaire has to reverse the proportionate. That is obviously the rule. If something is exempted, you have to reverse the ITC as well in that respect. Now, after that, this clarification has been given now that this annuity payment will be exempted, just to be at par or just to remove the difficulty which industry was facing. Or apart from that, there is another circular which was issued on the applicability of QR code, which was relaxed up to a time limit because after introduction of e-invoicing. Now, this particular circular covers a lot of questions which are answered, or I would say the anomalies or ambiguities which was related to this applicability of QR code in respect of B2C invoices have been removed now to a certain extent. And you can see this circular in a full manner. Considering the time limit, it won't be possible to cover this on the whole questions which are being answered in the circular, but that somehow clear the air around it. Apart from it, through 43
GST Council, which provided various other reliefs of notifying other amendments and all the late fees. Now you must be aware of all the late fees and interest relaxations which are given through all these notifications, and the rates which are applicable on certain important medicines have also been relaxed up to a certain limit, or I would say up to the 30th September. And a amnesty scheme was also introduced, in which it was said that if you file your returns between a certain time limit, then also you will not be applied a normal rate of late fee, but there is a capping of late fees there. Now, last topic which I want to specifically cover, that is Supreme Court order related to the time limits. Now, my view related to all these notifications which provided the limitation benefit is slightly different, because Supreme Court, if you see, there was a suo motu writ, civil writ, which was taken by Supreme Court himself last year, in which it was said that the limitation period was extended, like for all the proceedings which were going on, all the legal proceedings which were going on. But again, this particular, I would say, writ got ended. The effect of writ got ended on 14th March, after which certain time limits were given, that you have 90 days now for following the Limitation Act. But on 27th April, this Supreme Court order was again reinstated, I would say reinforced. Now from 14th March 2021, it is applicable till further orders. That means any judicial, any legal or quasi-judicial proceedings, if are pending before any authority, time limit to comply with, like suppose filing to the show cause reply or issuing any order, it is applicable both on department as well and on assessee as well. If you suppose there is a time limit related to filing of refund of any application or any proceedings, quasi-judicial proceedings, now there is no time limit for that. That time limit has been extended. Suppose you had an order last year, and for that you have only 3 months to file appeal against that order. Now through this notification or through this particular order, the time limit have been extended. Now you get the benefit of that. And CBIC also understand that, because when they issued the notification 14/2021, in which certain relaxations were given related to time limits, in that notification they have specifically mentioned, if you see, wherever the timelines for actions have been extended by Honorable Supreme Court, the same would apply. Now, I have a certain observation of problems with this particular notifications or circulars which are issued by the CBIC or CBDT, because when the time limit or the overall umbrella protection, or I would say umbrella exemption, is being given by the Supreme Court, then all these exemption or notifications which extended all the compliance and timelines doesn't really matter, because ultimately Supreme Court's order will prevail. So all these important changes were made, and recently 44th GST Council meeting were also held, in which certain other medicines or rates on such as sanitizer and temperature check equipments were also got reduced for a certain time limit. And they have in previous meeting they have gone for some recommendation to group of ministers as well, so that also been considered now. So all these changes were in previous 2 months. Rest after this session, if you will be this PPT will kind of work as a reference for you to summarize all the changes or amendments which are made in previous 2 months from Finance Act 2021. So that's it from my side. If anyone will be having any questions, so they can ask after this session, or maybe at the time slot given specifically for Q&A. Yes, thank you, Navjot. Very good, and you have very well covered the given topic, like finance amendment and the recent amendment, etc. And you also followed our timelines. So a big round of applause, clapping for the Navjot. He's a youngster and the newcomer to our group. So now, before the conclusion of this session, we have a question answer box. So Yuvraj Tiwari asked, do state notification is also required to amend section 35 subsection 5? Sir, when any notifications come now, you can check the state website as well. Consequently, they issue the same as it is
notification as well. Now you suppose your jurisdiction is under the state, and if any act is getting amended, so you see state is not having that power that they can amend their sections in a way they do so. So all the acts, if you see all the notification, all the changes are consequently, I would say, applied by the state authorities or state governments as well. So your question where you say that state notification is required, it is required, but it will be issued specifically. You should not wait for that. Okay. So even if it is not there, so we should consider the Exactly. provision of CGST notification is, Right. applies to all the states, right? Right. And before concluding this session, I would like to request to Rohit Basbani ji for his expert remark or on any of the amendment and the finance amendment also. Rohit ji. Thank you, Sanjay ji, and a very wonderful job has been done by CA Navjot Singh ji. Yes. He has joined us in BVSS first time as the speaker and discussing about the recent developments. And the journey of the BVSS GST group is quite long, and we started well before implementation of the GST in India. And it is in 2016, August or September. And now when the GST is completing 4 years, it is the 4 years time, which is GST is now completing tomorrow. And we are still holding monthly meetings regularly. And the time there in 2017, when the GST was about to implement, we were holding every week the workshop or seminars or the meetings within the GST group. So we would like Navjot ji to be part of the team BVSS, come and share your expert opinion, your valuable advice on the issue. And there are a lot of amendments which has been carried out by Finance Act 2021 also 2020, and recent many notifications has been issued, and I hope that in near future also we will see many notifications coming out, because this is, you know, for even after 4 years the GST law is new law. And if you think that the 4 years time to establish a law like the you know, this is a total structural level change which the country has seen in the indirect tax regime, and there are both sides of the coin. There are, you know, expectations, there are perceptions, and there are reality also. So if we talk about the expectation at the time of the implementation, the expectations were very high, and the perception somehow have the mixed opinion, mixed type of perceptions we see. And in reality, there are many things which I personally admire about the GST, and there are many things which we need to address seriously. And the time in the near future, 3-4 years, it will, I think, further it will take to get it settled, because the important question here, Sanjay ji, which I wanted to highlight here is, because from the taxpayers angle and from the angle of the business class, there are a lot of glitches, there are a lot of issues in implementation of the GST. But from the part of the government, the most important issue is the revenue collection. And if you compare the GST with the excise duty collection, with the VAT collections, you will find a different picture altogether. And I'm not taking much time, because I think this is the meeting we will be taking up as a completing the 4 years of the GST in country also, on behalf of the BVSS GST group. And regarding the recent amendment, one point I want to highlight about the amendment in section 35 by way of deletion of subsection 5, where the appointed date is yet to be notified, but the press release is talking about that it will be implemented from 2021. So I have a serious concern over, because the Finance Act do not have a provision for retrospective amendment of this particular section, and the section being procedural in nature mainly, how can it be applicable retrospectively from 2021, even though the date of appointment is not there with us even today?
This is the serious concern, and it should have been applicable from 21-22 onwards when the appointed day is notified by the government, because Finance Act is not giving the power to the government to apply it retrospectively. And Section 50 has already been notified. Appointed day has been already been given. When the Section 50 can be notified, why cannot any other section can be notified? Because some questions were coming regarding the passing of the relevant provision by the state legislature. So you see, naturally, all the states will pass the respective state GST law, but the Section 50 had already been notified, meaning thereby there may not be the state legislature who have passed the state acts, but Central GST Act has notified the implementation of the Section 50. So simultaneously, we will presume that whenever the state government will pass, it will be perimetria and it will be equally applicable from the date of appointment in the central law. And one important concern which is coming out from the amendment of Section 129, and which is, they were struggling because the name which we were doing, a tax and equal amount of penalty, the tax was creating so much hues, whether this tax is really the output tax or this tax is something GST or this is in penal in nature. So they had tried to clarify that this is not tax, this is all about penalty which we want to collect. But the important part is that how can they have the power to sell the goods in Section 129 itself? Can the detention of goods make the government eligible to sell the goods? It is very serious concern, and I have a doubt on it that whether the government assumes the power under Section 129 to dispose of the goods. So that is, the time will tell. But certainly one golden rule we keep in mind always for the MSME sector and small taxpayers, that whatever government is intending or whatever the government is posing to do, they will do it either way or either way, whether it is a retrospective amendment in future or whatever way. And if there is a huge amount of tax or big amount involved, that judgment may take years to come from the Honorable Supreme Court or High Court. And with this, I think, Sanjay ji, I have taken much time what you have asked. That is on the eve of the 4th year completion, and I want to make it here for the GST group of BVSS also. And I want to congratulate all the BVSS members also on this eve of completing 4 years, that we will keep on working hard. We will keep on trying to understand the law, however it may be going, and we will do our duties, let the government do their own duties. Thank you very much. Thank you, Rohit ji. Navjot ji, please PPT आप sharing हटा दीजिए. Yes, sir. Sorry. Okay. So thank you, Rohit ji. Thanks for your expert comments. And again, once more, thanks to Navjot. And please be with us for the remaining session and keep coming in the VBSS meetings. So now, without taking much time, I would like to start the next session. This GST implications on transfer of business due to death of proprietor. It's a 360-degree approach, and our Rohit ji is with us. And for the moderation of this session, Member Secretariat Board VBSS CA Manmohan Sharma ji is also with us. So we welcome Manmohan ji and Rohit ji both. Please start your session. Thank you. Manmohan ji. विपिन जी नमस्कार, रोहित जी नमस्कार, नमस्कार, सबको नमस्कार। मेरा मनमोहन शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मेरी प्रिविलेज है कि मैं आज पहली बार मॉडरेशन कर रहा हूँ, और वो भी रोहित जी के सेशन में कर रहा हूँ जहाँ रोहित जी स्पीकर हैं। तो ये मेरी प्रिविलेज है। मुझे इस पेंडेमिक ने सबके सामने बड़े बड़े क्वेश्चन खड़े किए हैं, और सबसे ज्यादा कड़े क्वेश्चन खड़े किए हैं उन लोगों के सामने जिनके फैमिली से कोई लॉस हुआ है या जिनकी फैमिली में कोई डेथ हुई है। तो उन्हीं कड़े क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो है वो हमने आज लिया है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है और उन लोगों की, उन फैमिली की
रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो हमने उस क्वेश्चन को लिया है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबके उन फैमिली के सामने आया है कि वो आगे जो बिजनेस है, जब प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो वो कैसे चले। तो इस सेशन को हमने एक थोड़ा सा डिफरेंट रूप दिया है इस बार, कि इस सेशन को हमने डेलिब्रेशन के रूप में ना लेके क्वेश्चन आंसर के रूप में लेने की कोशिश की है, जिससे कि हमारे मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव होने का मौका मिले। तो कुछ क्वेश्चंस हमने अपने बनाए हैं जो हमें लगते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेंबर्स के आए हुए हैं, वो भी हमने इसको इंक्लूड किया है। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन मेंबर बीच में पूछते हैं तो क्वेश्चन आंसर बॉक्स में अपने डाल सकते हैं, तो हम उसे टेकअप कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं रोहित जी से एक क्वेश्चन पुट करूंगा रोहित जी के सामने, कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है जिसमें प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, तो इसमें क्या टैक्सेबिलिटी है, क्या ये टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होगी? अगर टैक्सेबल ट्रांजैक्शन नहीं है, एग्जेम्प्ट ट्रांजैक्शन, तो इसकी एग्जेम्पशन हमें कहाँ से आ रही है रोहित जी? जी मनमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इस सेशन को देखते हुए कि यहाँ पे कोई हम एक लेक्चर या कोई स्पीच की तरह नहीं है, और एक ये डायलॉग है, इंटरेक्टिव डिस्कशन है। तो सबसे पहले तो मैं विपिन अग्रवाल जी जो प्रेसिडेंट है बीवीएसएस, उनकी प्रेजेंस है, उनको नमस्कार करता हूँ। संजय जी कन्वीनर ऑफ द जीएसटी ग्रुप। जीएसटी ग्रुप के बारे में मैंने थोड़ा सा अभी जब नवजोत जी ने क्लोज किया था तब अपनी बात रखी थी। और ये जर्नी हमारी 5 साल की हो गई और जीएसटी की जर्नी 4 साल की हो गई। और उसके साथ ही आस्था भी है, और एज ए को कन्वीनर हमारे साथ शुरू से ही जुड़ी रही, और अब जीएसटी ग्रुप में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह और एक बहुत डायनामिक लीडर की तरह उभर के आ रही है धीरे धीरे, और जीएसटी के बारे में बहुत पैनी नज़र रखती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इस तरह की इनपुट से हम सब लोगों का एक बेनिफिट होता है। तो ये जो डायलॉग है, इसको मैं आपने एक क्वेश्चन किया है, मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको एक प्रेजेंटेशन का पार्ट जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज हुआ है कि वेदर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस पर से बाय व्हाट एवर रीजन कोई भी हो सकता है, कि उसका जीएसटी इंप्लीकेशन क्या है। आखिर सवाल यही है ना कि भाई ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है तो हम उसको जीएसटी में किस रूप में देखते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस जो है, कई तरीके से ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है, और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तो कंपल्शन है कि बाय वे ऑफ सिविल लॉज वो ट्रांसफर हो गया, जैसे अभी आप हम आगे चलेंगे तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन कुछ जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हैं वो एक चॉइस है, कि आपने चॉइस के थ्रू जो है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस किया, और उस चॉइस में बहुत सारे एक मेथड्स हैं। तो देखते हैं जरा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस जो है वो किन किन तरीके से हो सकता है। और यदि आप ट्रांसफर ऑफ बिजनेस को देखेंगे तो एक सेल ऑफ बिजनेस है। तो सेल ऑफ बिजनेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस डिस्कशन में, कि हम स्लम सेल की बात कर रहे हैं। एक स्लम सेल का कॉन्सेप्ट होता है, यदि आप इनकम टैक्स में भी देखें तो आपको एक अलग से सेक्शन मिलता है स्लम सेल का। और अला कार्टा बिजनेस सेल जो सेल है कि आपने स्टॉक सेल कर दिया अलग से, एसेट अलग से सेल कर दी, तो वो जो है वो बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम सेल ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो सेल ऑफ बिजनेस एज ए होल की बात करते हैं, और इसको समझना बहुत जरूरी है कि सेल ऑफ बिजनेस एज ए होल कैसे हो सकता है। वो बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट से भी हो सकता है, उसकी लीगलिटी भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मर्जर में भी बिजनेस ट्रांसफर होता है, क्योंकि दो कंपनियां एक साथ एक में मर्ज हो जाती हैं या अमलगमेट हो जाती हैं, तब भी उसमें बिजनेस ट्रांसफर होता है। डीमर्जर में एक से नई कंपनी क्रिएट हो जाती है, तो भी हम उसको बिजनेस ट्रांसफर मानते हैं, क्योंकि एक कंपनी बड़ी है, उसमें से एक अंडरटेकिंग, जैसे आप समझे ना, सेगमेंटल रिपोर्टिंग होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो एक सेगमेंट है, यदि एक सेगमेंट पूरा का पूरा अलग कंपनी में बना दिया जाए तो उसको हम बोल रहे हैं डीमर्जर। क्योंकि सेगमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं सेगमेंट को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि वो सेगमेंट इटसेल्फ एक बिजनेस है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसा नहीं है कि वो सेगमेंट डिपेंडेंट है, वो अपने आप में एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसको कि हम एक नई कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं।
और फिर डेथ ऑफ प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल है, जिसपे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आगे चल के, ये भी एक बिजनेस ट्रांसफर का मेथड है। और पार्टनरशिप के केस में एलएलपी हैं, जैसे एलएलपी में पार्टनर की डेथ हो जाती है, या पार्टनरशिप फर्म के केस में भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उन केसेस में भी एज पर द प्रोविजंस ऑफ जो एलएलपी एग्रीमेंट है या पार्टनरशिप डीड है, उसमें बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है उन एग्रीमेंट्स के प्रोविजंस के हिसाब से। तो इन सारे जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांसफर हैं, इनके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी क्या आती है, क्या वास्तव में ये जीएसटी में टैक्सेबल हैं? तो हम 3 क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे बहुत ब्रीफली, क्योंकि लीगली बहुत वाइड हो जाएगा। क्या ये सप्लाई है? पहला सवाल ये है, क्या ये सप्लाई है? दूसरा सवाल है कि क्या सप्लाई है तो ये गुड्स की सप्लाई है या गुड्स सर्विसेज की सप्लाई है, आप इसको कैसे देखते हैं? और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है, यानी कि इसके ऊपर कोई एग्जम्पशन तो नहीं है जो गवर्नमेंट ने दी हुई है हमारे को ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में। और क्यूमुलेटिवली यदि आप देखेंगे तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस हमें जीएसटी लॉ में मिल रहे हैं, क्लियर कट प्रोविजंस जीएसटी लॉ में हमें मिलते हैं। लेकिन फिर भी जो जीएसटी लॉ जब ड्राफ्ट हुआ तो उनकी इंटरलिंकिंग इतनी अप टू द मार्क नहीं है कि हम उसको ये कह सकें कि ये देखिए बिल्कुल आपस में जुड़े हुए प्रोविजन है। स्टैंड अलोन अलग अलग प्रोविजन भी आपको जीएसटी लॉ में मिलते हैं। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे आईटीसी को रिवर्स करना है या आउटपुट टैक्स देना है, ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन कई बार आता है। तो अब आउटपुट टैक्स देना है तो वो अलग सिचुएशन बनेगी, आईटीसी को रिवर्स करना है तो वो अलग सिचुएशन बनेगी। तो जो बिजनेस की डेफिनेशन है उसके हिसाब से यदि हम देखें, और तो बिजनेस की इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और अभी एक बात हो रही थी कि सेक्शन 7 में सबसेक्शन 1 में एक क्लॉज और इंसर्ट हुआ है AA, तो जो एसोसिएशंस हैं, क्लब्स हैं, उनके रिलेटेड एक क्लॉज और इंसर्ट हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिवली हुआ है, 1 जुलाई 2017 से हुआ है। तो जो ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, वहां पर जो म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट है उन्होंने उसको ओवररूल किया हुआ था। तो डेफिनेशन बिजनेस की बहुत वाइड है, और बिजनेस की वाइड डेफिनेशन में हर तरह के सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस कवर होते हैं। और इसमें जो डी क्लॉज है वो स्पेसिफिकली कहता है कि बिजनेस में कि सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो सर्विसेज इन कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस भी बिजनेस की डेफिनेशन में कवर्ड हैं। और देखिए, ये तो सेल टैक्स में भी स्टेब्लिश हो गया था कि जो इंसिडेंटल और एंसिलरी ट्रांजैक्शंस हैं सेल्स टैक्स और वेट में, वो भी पार्ट ऑफ बिजनेस माने जाते हैं। और उनको आप इंसिडेंटल या एंसिलरी माने या स्पेसिफिक प्रोविजन माने, कहीं ना कहीं वो बिजनेस की डेफिनेशन में आते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सप्लाई की डेफिनेशन में आते हुए दिखते हैं। तो क्लियर कट इनकम टैक्स में भी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस को कैपिटल गेन माना जाता है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की भी लायबिलिटी आती है। लेकिन सवाल ये आता है कि उसको हम क्या माने, क्या उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स माने, क्या उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने। और इन सबको जब आप डेफिनेशंस को क्यूमुलेटिवली देखते हैं तो आपको ये एक आता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स तो सर्टेनली ये नहीं है, क्योंकि स्टैंड अलोन हो सकता है। इसमें इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, आईपीआर के राइट्स भी हो, ट्रेडमार्क भी हो, पेटेंट भी हो, फॉर्मूला भी साथ में हो, गुडविल भी साथ में जा रही है, प्लांट एंड मशीनरी भी साथ में जा रही है, स्टॉक भी साथ में जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स भी साथ में जा रही है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स स्टैंड अलोन नहीं हो सकता, और जो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, और यदि आप सप्लाई ऑफ गुड्स का स्पेसिफिक शेड्यूल 2 में देखें, शेड्यूल 2 हालांकि कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं है, शेड्यूल 2 सप्लाई की डेफिनेशन नहीं है, केवल एक डीमिंग फिक्शन है कि कौन सी सप्लाई गुड्स की मानी जाएगी, कौन सी सर्विसेज की मानी जाएगी। तो उसमें भी 2 ट्रांजेक्शन्स को उन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स से एक्सक्लूड किया हुआ है, और उसमें क्लियर कट मेंशन है कि द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। तो जब एज ए गोइंग कंसर्न बिजनेस का ट्रांसफर है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में फॉल होता हुआ दिखता है। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एक जो मेगा एग्जम्पशन है, जो मास्टर नोटिफिकेशन 12/2017 है, उसमें एक सीरियल नंबर 2 है। यदि हम उसमें एग्जम्पशन को देखते हैं तो कहता है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर of a going concern as a whole or independent part thereof। as a whole का भी बहुत मतलब है, as a independent part का भी बहुत मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हैं, और इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व हैं
और यदि सर्विसेज इन्वॉल्व हैं तो या तो एग्जम्पशन मिलेगी, और एग्जम्पशन नहीं मिली तो सर्विस का रेट एप्लीकेबल होगा, और सर्विस का रेट यदि कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो 18% जो नॉर्मल रेट है सर्विसेज का अदर रेजिडरी कैटेगरी में वो एप्लीकेबल हो सकता है। तो मनमोहन जी, मैंने कोशिश करी कि आपके इस पहले क्वेश्चन को मैं आंसर कर पाऊं। ये आपने अच्छी तरह आंसर किया और हम शायद कंसेप्ट क्लियर भी हुई है काफी लोगों को, क्योंकि ये अभी तक तो कंफ्यूजन ये था कि गुड्स है या सर्विस है या टैक्सेबल है नहीं टैक्सेबल है। अब आपने ये कंफर्म किया कि ये सर्विसेज में फॉल हो रहा है और सर्विस की एग्जम्पशन आ रही है नोटिफिकेशन नंबर 12 से, और उसमें निल टैक्स दिया हुआ है 12 में। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर ये एग्जेम्प्ट है तो अब इसका प्रोसीजर क्या बनेगा, कैसे ट्रांसफर करें हम, क्या प्रोसीजर, अब राइट प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें कि बिजनेस को स्मूथली ट्रांसफर हो जाए और हमारी कोई ऐसी टैक्सेबिलिटी ना रह जाए कि हमारा कोई टाइम लैप्स हो जाए, टाइम गैप हो जाए, हमारी टाइमिंग आगे पीछे हो जाए जिससे कि लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए। तो ऐसा क्या कैसे प्रोसीजर और क्या टाइम लैप होगा हमारा कि जिससे कि स्मूथ ट्रांसफर हो जाए? देखिए, ट्रांसफर के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहले तो हम ये समझें कि हम कौन से वाले ट्रांसफर को डील कर रहे हैं, क्योंकि यदि मैं ट्रांसफर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं उसका रीजन भी है। एक हिस्सा तो ये है कि ट्रांसफर बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट है, बल्कि तीन हिस्सों में हमें इसको डिवाइड करना चाहिए। एक तो बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट है, दूसरा डेथ ऑफ द प्रोपराइटर का जो केस है वो एक अपने आप में अलग केस बनता है, तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डेलिब्रेट नहीं हुआ और आज हमें उस पर थोड़ा सा डेलिब्रेशन करना चाहिए, आपके क्वेश्चन में होगा तो तब उसको कवर करेंगे, कि पार्टनर की जो डेथ होती है पार्टनरशिप फर्म में या एलएलपी में जो पार्टनर की डेथ होती है, तो वहां क्या सिनेरियो बनता है इस जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ए गोइंग कंसर्न बिजनेस ट्रांसफर को लेकर के, तो वो भी हमें एक पार्ट डिस्कस करना चाहिए। तो ये तीन पार्टों में इसको हम देखते हैं कि जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांसफर है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि यदि आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो तीनों कैटेगरी में से कोई भी हो, तो ये बिजनेस ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न होना चाहिए। तो बल्कि मैं तो ये इंटरेक्टिव डिस्कशन करना चाहता हूँ कि गोइंग कंसर्न है क्या, मतलब आप किसको कहेंगे। गोइंग कंसर्न इज नॉट डिफाइंड अंडर द जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में कहीं ये नहीं लिखा कि व्हाट इज गोइंग कंसर्न। और जो बेसिक अजम्पशन होती है, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम वन ही देखते हैं, जो बेसिक अजम्पशन है, तो बिजनेस का ऑडिट जब हम करते हैं तो हमारा एक बेसिक अजम्पशन होता है कि इट इज ए गोइंग कंसर्न। और लास्ट ईयर यदि आप याद करें, जब 2020 के ऑडिट हो रहे थे और कोविड के टाइम जब फोर्स मेजर की सिचुएशन थी, तो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि ऑडिटर को क्या एज ए गोइंग कंसर्न की एंटिटी पर कोई कमेंट करना चाहिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में या नहीं करना चाहिए। तो गोइंग कंसर्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि हमें एग्जम्पशन क्लेम करना है तो इन तीनों तरह के ट्रांसफर के केसेस में कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न होना चाहिए। और ट्रांसफर ऑफ ए रनिंग बिजनेस विच इज कैपेबल ऑफ, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीइंग कैरीड ऑन बाय द परचेजर एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस। परचेजर या ट्रांसफरी, आप इसको किसी भी रेफरेंस में ले सकते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरह कैपेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आपकी एक ऑफसेट प्रिंटिंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ऑफसेट प्रिंटिंग का काम करते हैं, आपने ऑफसेट प्रिंटिंग की मशीन बेच दी और मशीन बेच के आपने जो बाकी स्टॉक था वो कहीं और बेच दिया, तो देर इज नो रनिंग बिजनेस विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। चलता हुआ ऑफसेट मशीन में जो ट्रांसफर है, जहाँ पे सारे उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज भी साथ में जा रहे हैं और जो एक इंडिपेंडेंट उसको हम चला सकते हैं, तो ये फैक्ट्स ऑफ द केस है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जहाँ सर्टिफाई करना होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट को, यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेशन भी इन्वॉल्व है, आईटीसी ट्रांसफर में भी सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व है, और जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उसके टैक्स कैलकुलेशन में भी सर्टिफिकेशन इंक्लूड है। तो ये दोनों सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सर्टिफिकेशन के काम अब सीएमएस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास आने वाले हैं, और ये सर्टिफिकेशन तभी हम कर पाएंगे जब हम समझेंगे कि उसकी वैल्यूएशन क्या है और वैल्यूएशन के हिसाब से उसका टैक्स क्या बनता है। तो एक बात तो ये है कि यदि जीएसटी में आपको आईटीसी ट्रांसफर का बेनिफिट लेना है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी फॉर द जीएसटी, मतलब कि पूरी की पूरी लायबिलिटी भी वो ट्रांसफर हो रही है। ये सवाल क्यों खड़ा हुआ
ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ, यदि आप वो एग्जम्पशन देखेंगे जो सीरियल नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, तो उसमें एज ए होल और पार्ट देयर ऑफ दोनों की बात हो रही है। तो जब पार्ट देयर ऑफ बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? लेकिन बिजनेस अपने आप में इंडिपेंडेंट बिजनेस होना चाहिए, एक सेगमेंट हो सकता है उस बिजनेस का, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में लायबिलिटीज का भी पूरा ट्रांसफर हो। तो हमें यहाँ पे एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट को पढ़ने की जरूरत है, अमलगमेशन है तो जो एनसीएलटी का ऑर्डर है उसको पढ़ने की जरूरत है, डीमर्जर का ऑर्डर पढ़ने की जरूरत है, जो प्रोप्राइटरशिप नॉर्मल स्लम सेल है उसके एग्रीमेंट को पढ़ने की जरूरत है। डेथ के केस को अभी हम सेकेंडली डिस्कस करेंगे। तो इस केस में हमें ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो। फिर उसके बाद वो प्रोसीजर आते हैं, तो जो प्रोसीजरल है वो मैं आपसे के साथ शेयर करूंगा। तो और इसके बाद मनमोहन जी आगे चलते हैं। प्रोसीजर में ही पॉइंट था, लेकिन आप कह रहे हैं प्रोसीजर एक साथ ही हम कर लेंगे उसे कवर। नहीं, प्रोसीजर कर सकते हैं आप, एक पॉइंट जो है वो जोड़ दीजिए, प्रोसीजर को हम शुरू कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि बिजनेस को एज ए होल ही ट्रांसफर करना है। अगर किसी भी डिसीज प्रोप्राइटर के अगर 2 लीगल हेयर हैं और वो दोनों ही अलग अलग बिजनेस हाफ बिजनेस लेना चाहते हैं, तो क्या ऐसी कोई प्रोविजंस या ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो 2 में डिवाइड हो जाए? या तो सेगमेंट बना के, जैसे आप कह रहे हैं अगर अलग अलग सेगमेंट है तो गोइंग कंसर्न सेगमेंट बना के अलग अलग कर दें, या उसी बिजनेस को हाफ डिवाइड करके अगर हम करते हैं तो क्या वो एग्जेम्पशन हमें मिलेगी? बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं एक प्रोसीजर के 2-3 सेक्शन आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले मैं एक सवाल अब इम्पोर्टेंट जो है कि वो डेथ का केस आ रहा है। तो जो हमने 3 सेगमेंट बनाए थे बिजनेस ट्रांसफर के, तो जो सेकंड डेथ का केस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि डेथ आखिर किसकी होती है और डेथ का क्या रिलेवेंस है यहाँ पे। क्या किसी पार्टनरशिप फर्म की डेथ हो सकती है? क्या किसी एलएलपी की डेथ हो सकती है? जब हम डेथ की बात करते हैं तो वो नेचुरल पर्सन की हम डेथ की बात करते हैं, और जब हम नेचुरल पर्सन की डेथ की बात करते हैं तो वो एक अपने आप में एक अलग सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसको हैंडल भी अलग से किया है लॉ में। लॉ में स्पेसिफिकली प्रोविजन सेक्शन 93 है जो डेथ से रिलेटेड लाइबिलिटी की बात करता है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के लिए अलग सेक्शन है, डेथ के लिए अलग सेक्शन है। तो जब डेथ ऑफ नेचुरल पर्सन की हम बात करते हैं तो वहां पे ना सिविल लॉज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो रोल प्ले करते हैं। जीएसटी लॉ तो सेकेंडरी है। सबसे पहले तो आप देखिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, आपको ये देखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ डेथ कौन सक्सेसर है। ये जीएसटी लॉ नहीं बताएगा हु इज द सक्सेसर, हु इज द लीगल हेयर। सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट में अप्लाई होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के प्रोविजंस के हिसाब से, लेकिन इंडियन सक्सेशन एक्ट रीड विद रिलेवेंट पर्सनल लॉ, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 देखना पड़ेगा आपको हिंदू के केस में भी आप डिस्कस कर रहे हैं तो। ऐसे ही और कोई यदि रिलीजन है तो उसका पर्सनल लॉ आपको देखना पड़ेगा फॉर द सक्सेशन पर्पस, और उसको फिर प्रोसीजरली आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी तो सक्सेसर के लिए। और साथ में लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी बनता है। आपको पता है कि जो कई जगह म्यूनिसिपैलिटी और स्टेट गवर्नमेंट लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। तो सवाल ये है कि जीएसटी लॉ में तो सक्सेशन कहाँ होगा इसके बारे में कोई नहीं है, ये तो नेचुरल है, दिस इज बाय वे ऑफ सिविल लॉ। वो तो जिस दिन डेथ हुई एक्चुअल में उसी समय डेथ होते से ही वो लॉ एप्लीकेबल हो गए। अब प्रोसीजरली आप उनको कब अप्लाई करोगे वो एक अलग है। मान लो किसी पर्सन की डेथ 25 को हुई है तो नेचुरली 26 से सक्सेसर उनका बिजनेस में आ गया, या लीगल हेयर उनके बाई वे ऑफ लॉ ऑलरेडी हैं। अब उनको डिक्लेयर करना, या कोई विल है तो विल के केस में बड़ा आसान होता है लीगल हेयर। जहां पे विल नहीं होती तो फिर आपको कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, और यदि विल को कोई चैलेंज करता है तो उस केस में फिर लिटिगेशन खड़ा होता है। तो यदि सिंपली हम देखें जीएसटी के लॉ के रेफरेंस में तो सक्सेसर कौन है ये जीएसटी लॉ नहीं बता रहा, बट जो नेचुरली सक्सेसर है उसकी लायबिलिटी क्या है ये जीएसटी लॉ बता रहा है। और यदि आप उसकी लायबिलिटी देखते हैं तो एक सेक्शन 22 है जो प्रोसीजरली बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। और वो कहता है कि आप सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 कि इन दिस केस देयर विल बी लायबिलिटी टू रजिस्टर।
इसका मतलब कि वेयर ए बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड वेदर on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee or the successor, as the case may be, shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession. तो एक्चुअली तो सक्सेशन इमीडिएट हुआ डेथ से, तो इसमें नए रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी है। ये लॉ आप देखिए उनके लिए नहीं कह रहा जो अनरजिस्टर्ड है। यदि किसी अनरजिस्टर्ड के केस में सक्सेशन होता है तो सक्सेसर की लाइबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रेशन की, वो तो नेचुरल लॉ जीएसटी में यदि वो 22(1) में लाइबल होगा तो करेगा। लेकिन यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, अब आपको उसका टर्नओवर नहीं देखना। यदि सक्सेसर ये कहे कि भाई मेरा टर्नओवर तो 20 लाख से कम है, व्हाई शुड आई टेक द रजिस्ट्रेशन? नो, it is mandatorily liable to take registration if the predecessor was a registered person. तो गोइंग कंसर्न के रूप में यदि बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी मैंडेटरी आ गई। और मैंडेटरी के साथ साथ यदि आप देखेंगे प्रोसीजर तो 30 दिन का टाइम है। 30 डेज में आपको जब इवेंट अकर हुई, चाहे वो सेक्शन 22(3) की हुई या और भी कोई है, तो विद इन 30 डेज आपको नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। तो एक तो ये प्रोसीजर हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरी क्या लाइबिलिटी आती है कि जो आपको रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। कौन सा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है? जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन। रीजन क्या है कि जहां बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है या ट्रांसफर हो गया है बाय एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर या अमलगमेशन या और भी कोई रीजन है अदरवाइज भी, तो उस केस में वो जो रजिस्ट्रेशन है उसको आपको सरेंडर करना है। नहीं तो जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर है वो सुओ मोटो आपको आरसी कैंसिल भी कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन बहुत जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा वो है सेक्शन 29 का सबसेक्शन 3। स्पेसिफिक प्रोविजन जीएसटी लॉ में है कि जो लाइबिलिटी है वो इम्पैक्ट नहीं होगी जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, चाहे वो डेथ का केस है चाहे कोई भी है, वो जो लाइबिलिटी है वो असेसमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा अप टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, and the cancellation of registration under section shall not affect the liability of the person to pay tax and other dues under this act or to discharge any obligation under this act or the rules made thereunder for any period to the date of cancellation. तो अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन है कि वो लाइबिलिटी रहेगी। असेसमेंट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकती है, रिकवरी भी हो सकती है। वो रिकवरी कैसे होगी वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से ये जो प्रोसीजर है दो इम्पोर्टेंट, ये मैंने आपको बताया कि आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके लिए REG 01 फॉर्म फाइल करना है। वो फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा अभी इसके साथ ही। और जो सरेंडर करना है तब आपको उसमें जो रजिस्ट्रेशन आपने नया लिया है उसको मैपिंग करनी है, यानी कि नए रजिस्ट्रेशन का GSTIN आपको सरेंडर के टाइम पे जब आप REG 16 शायद फॉर्म है वो फाइल करेंगे तो उसमें मैपिंग। इसमें एक क्वेश्चन रोहित जी आता है कि जैसे डेथ हो गई और डेथ के बाद की जो लायबिलिटी है जब तक वो लाइव था तो उसकी रिटर्न जो भरनी है वो उसकी रिटर्न कौन भरेगा और कैसे भरेगा? क्योंकि उसमें तो सिग्नेचर्स या जो भी अथॉरिटी है वो तो डिसीज प्रोप्राइटर की थी, तो अब वो उसके लिए क्या चेंज कराना पड़ेगा हमें जीएसटी पोर्टल पे, या उसकी लायबिलिटी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो कोई उसका लीगल हेयर भरेगा, तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए इसमें कई सारे प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं और लीगल और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, तो इसलिए इसको समझने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा जो लीगल हेयर है वो बाय वे ऑफ सिविल लॉ है, उसमें जीएसटी का रोल नहीं है। तो लीगल हेयर आ गए, जो लीगल हेयर हैं उनकी लायबिलिटी फिक्स है लॉ में, उसको सेक्शन को भी देख लेंगे। सेक्शन 93 जो है उसमें लीगल हेयर की लायबिलिटी फिक्स है। तो जब लीगल हेयर की लायबिलिटी फिक्स है तो लीगल हेयर का काम है कि वो जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन है या जो रजिस्ट्रेशन है उसको देखे कि क्या दो सिनेरियो अराइज होंगे। क्या वो एज ए गोइंग कंसर्न उसको कैरी ओवर करना चाहते हैं, बिजनेस को कैरी ओवर करना चाहते हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन लेके और ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज करनी है। और यदि आप कैरी ओवर नहीं करना चाहते हैं तो आप सरेंडर करेंगे, तो फिर सरेंडर के केस में जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी स्टॉक पर या जो भी एसेट्स हैं एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन। वो जो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होंगी उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा।
तो एज ए लीगल हेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको ऑथराइज सिग्नेटरी की तरह एडिशन अपना कराना चाहिए रजिस्ट्रेशन में, और उससे आपको सारे अपने काम करने चाहिए। अब देखिए क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है पैन बेस्ड है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जिस दिन डेथ हुई पैन नंबर बेस्ड है, इसलिए आपको नया कह रहे हैं। क्योंकि यदि मैं अभी आपको पीछे 2017 से पहले वैट में ले जाऊं, तो दिल्ली वैट में तो हम लोग अमेंडमेंट कराते थे, देयर वाज नो नीड टू टेक द न्यू नंबर। जो टिन नंबर है उसी में अमेंडमेंट हो जाता था, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का, सेम नंबर वाज कंटिन्यू। सेल्स टैक्स में भी ऐसा होता था कि सेम नंबर कंटिन्यू होता था, उसी में अमेंडमेंट हो जाता था। अब प्रैक्टिकल क्या इशू है कि पैन नंबर तो वो ओल्ड है, यदि तो यदि आप उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो उस ओल्ड पैन नंबर पे ही रिपोर्ट होगा। तो इसीलिए आपको लॉ ने क्लियर कर दिया कि आप वो नंबर सरेंडर करेंगे, नया रजिस्ट्रेशन लेंगे, आप एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी उसमें ऐड हो जाइए, एप्लीकेशन मूव कर दीजिए, और टिल द टाइम यदि गवर्नमेंट ऑफिसर डिपार्टमेंटल ऑफिसर से आप कांटेक्ट करके उस पर इनेबल कर सकते हैं, और अदरवाइज नया रजिस्ट्रेशन तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं जब तक कि आप ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड होते हैं तब तक। मेरे ख्याल से मनमोहन जी एक क्वेश्चन और आपने पूछा था पहले, पार्टनर वाला पार्टनर। एक क्वेश्चन, हाँ मुझे वो जो आप बता रहे हैं पार्टनरशिप वाला, कि अगर जैसे आप लीगल हेयर हैं, वो दोनों लीगल हेयर पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, या जितने भी लीगल हेयर हैं वो पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, तो क्या वो बिजनेस उस पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर हो सकता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डेथ सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, तो पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो डेथ सर्टिफिकेट तो हमें नेचुरली लगाना चाहिए, और वो नया रजिस्ट्रेशन लेते हुए भी यदि एज ए गोइंग कंसर्न है, और पुराना नंबर सरेंडर करते हुए भी। और 30 दिन का पीरियड जो अप्लाई करने का है, यदि आप उसमें अप्लाई नहीं करते तो उसमें जो आपको जीएसटी के बेनिफिट्स हैं वो आपको डिनाई होंगे। यानी कि जो आप टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते थे या आईटीसी का बेनिफिट ले सकते थे, जब तक आप अपनी लाइबिलिटी और वैलिडिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक आप ये जीएसटी के बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो इसीलिए वही सिचुएशन अराइज होगी जैसे नॉर्मली भी आप लेट यदि रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपकी जो सिचुएशन होती है वही सेम इस केस में भी अराइज होगी। अब देखिए क्या है कि मान लो एक जो डिकीज है उसके दो लीगल हेयर हैं, और वो दोनों दो तीन सिनेरियो हो सकते हैं। या तो वो दोनों एक पार्टनरशिप बना के बिजनेस करना चाहते हैं, तो यस दे कैन डू, नया रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म के नाम पे लिया जा सकता है। तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम प्रोपराइटर टू पार्टनरशिप इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोपराइटर, और आप नया रजिस्ट्रेशन लेंगे और उसके साथ उसकी मैपिंग करेंगे, वो एक प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो करेंगे। दूसरा केस ये राइज होता है, नहीं जी हम दो अलग अलग फर्म चलाना चाहते हैं, यानी कि दो बेटे हैं, दो अपनी प्रोपराइटरशिप फर्म चलाना चाहते हैं। यहाँ पे एक सीरियस क्वेश्चन है, क्या वो दोनों का बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फैक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। यदि हमारे यूनिट इस तरीके के हैं कि दो यूनिट थे, एक यूनिट एक भाई ने ले लिया, दूसरा दूसरे भाई ने ले लिया, एक फैक्ट्री एक के पास चली गई, दूसरी फैक्ट्री दूसरे के पास चली गई, तो यस आप कर सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ सक्सेसर इन ए बिजनेस, लीगल हेयर इन ए बिजनेस, और आप वो एज ए गोइंग कंसर्न कैरी कर सकते हैं उसमें। या दो तरह के बिजनेस भी हो सकते हैं, ऐसे दो तरह के बिजनेस हो, अलग अलग बिजनेस अलग अलग हेयर को चलेगा। यस एक और इसमें सिचुएशन होती है कि जो मान लो लीगल हेयर है उनके पास ऑलरेडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। मान लीजिए एक लीगल हेयर है और उसकी अपनी प्रोपराइटरशिप फर्म ऑलरेडी है, तो डू ही नीड टू टेक अनदर न्यू रजिस्ट्रेशन? तो नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन है, वो उसी रजिस्ट्रेशन में अपना ट्रांसफर कर सकता है बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न। उस केस में प्रॉपर कोई फॉर्म्स नहीं है जो डिपार्टमेंट को आप इंटीमेट कर सकें कि ये बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न आपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में ट्रांसफर किया है। हाँ आईटीसी 2 फॉर्म यदि बैलेंस है आईटीसी का तो विद सीएसीएमए सर्टिफिकेट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसकी इंटीमेशन जो प्रॉपर ऑफिसर है उनको इन राइटिंग देनी चाहिए कि द बिजनेस हैज बीन ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न ड्यू टू द डेथ ऑफ प्रोपराइटर एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जैसे आप बेनिफिट ले सकें जो एग्जम्पशन का, स्टॉक एसेट सब कुछ एज इट इज, लायबिलिटी एसेट ट्रांसफर हो रही है। यहाँ आप कह रहे थे कि उसका लिंक कर दें, अगर हम जीएसटी नंबर जब हम सरेंडर करेंगे
जब आप सरेंडर करेंगे तो आप दे सकते हैं एग्जिस्टिंग नंबर जो आपके पास है, एग्जिस्टिंग नंबर दे देंगे, उससे लिंक भी हो जाएगा उसका link भी। वो आप दे सकते हैं, लेकिन नया नंबर लेते समय भी एग्जिस्टिंग नंबर देते हैं जो उसमें कॉलम है, वो आप नहीं देंगे। और एक क्लियर कट लिंक तो हो जाएगा एक, लेकिन फिर भी प्रॉपर ऑफिसर के पास राइटिंग में आपको भेजना चाहिए, दे देना चाहिए। और उसमें डेथ सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो लगानी चाहिए। इसमें अभी हम लीगल हेयर की बात कर रहे हैं, सक्सेसर की बात कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन ये भी बन सकती है कि जैसे हम लोग जो लीगल हेयर हैं वो बच्चे हैं, छोटे हैं, बिजनेस को वो कैरी ऑन नहीं कर सकते, तो हम उस बिजनेस को सेल करना चाहते हैं। जैसे आपने शुरू में बताया था, उस बिजनेस को वे सेल कर देते हैं उस बिजनेस को। तो जब हम सेल कर देते हैं बिजनेस, तो उसमें क्या इम्प्लीकेशन आएंगी इससे हटके? अगर लीगल हेयर का केस है और एक थर्ड पार्टी सेल है, तो उसमें कोई डिफरेंस आएगा, और आएगा तो कहाँ पे आएगा? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जरा सेल वाला भी हैंडल कर लेता हूँ। देखिए क्या है कि सेल से रिलेटेड यदि आप स्पेसिफिक प्रोविजन देखेंगे तो स्पेसिफिक प्रोविजन है कि आपकी लाइबिलिटी सेक्शन 29 में आपकी अराइज हो जाती है। और सेक्शन 29 में आपको शेयर करता हूँ, एक एक सेक्शन है 29(5), उसमें ये क्लियर कट प्रोविजन है कि जो भी आरसी कैंसिल हुई है उस केस में जो स्टॉक है या जो कैपिटल एसेट्स हैं उनका जो टैक्स है या जो आउटपुट टैक्स है विच एवर इज हायर, वो आपको वहां पे पे करना है। और यदि आप देखेंगे तो एक जीएसटी का 10 फाइनल रिटर्न है, उसमें भी टैक्स की वो बात करता है। और जो कैंसिलेशन का ऑर्डर आता है उसमें भी आप देखते हैं कि टैक्स का एक कॉलम बना हुआ है। तो देयर इज अ टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस आल्सो, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आल्सो। तो यदि जो लीगल हेयर हैं, यदि लीगल हेयर वो बिजनेस नहीं करना चाहते, तो जो स्टॉक पड़ा है और जो एसेट्स हैं उस पे उनकी लाइबिलिटी आती है। वो लाइबिलिटी कितनी आती है वो सेक्शन 93 में हम लोग हैंडल करेंगे। और सेक्शन 93 में आपको एक मिनट के लिए शेयर करता हूँ कि आप देखें कि उस केस में लाइबिलिटी कितनी आ रही है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और मैं जरा लाइबिलिटी आपको इसमें रोहित जी, मैं आपसे ये डिसकंटिन्यू करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो हम थर्ड पार्टी सेल कर रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी सेल जो आप कर रहे हैं ना, गोइंग वो कंसर्न ही सेल होगी, थर्ड पार्टी सेल भी ऐसे गोइंग कंसर्न सेल होगी, बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू सेल होगी, जो भी जैसे भी होगी। तो उसमें भी कोई एक्स्ट्रा कोई प्रिकॉशन हमें रखने की जरूरत है? जैसे हम लीगल एयर में पूरी एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, तो जब हम थर्ड पार्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, जैसे कि हमें एग्जेम्पशन डिनाई ना हो पाए, हमें एग्जेम्पशन मिल जाए, ऐसा कोई? एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ये है कि देखिए बाय नेचुरल सिविल लॉ ये जो बिजनेस आया है ट्रांसफर बाय वे ऑफ डेथ ऑफ प्रोपराइटर, ये लीगल हेयर के पास आया है। पहले लीगल हेयर अपना रजिस्ट्रेशन ले, क्योंकि जो सक्सेसर इन बिजनेस है नया, वो रजिस्ट्रेशन लेकर के उसको ट्रांसफर कराए। उसके बाद बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हो और वो बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करके नए बिजनेस को वो सेल करे। ये चेन जो है ये इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है हमें इसको मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज इसमें इशू आ सकते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली जो है ना वो, क्योंकि सक्सेसर पहले वो खुद सक्सेशन तो करे, राइट तो उसके पास तभी आएंगे। तो ये है। और दूसरा लाइबिलिटी की एक बार मैं जरूर जो आपसे बात कर रहा था वो भी मैं एक बार आपके सामने शेयर करता हूं, क्योंकि वो एक इशू अराइज होता है कि दोनों केस में जहां पे डेथ ऑफ द पर्सन है तो लाइबिलिटी क्या आ रही है। तो देखिए 93 में 1 में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि इन केस ऑफ डेथ, भले ही वो लाइबिलिटी जो है पहले बिफोर डेथ डिटरमाइन हो गई है या आफ्टर डेथ भी असेसमेंट हो सकता है। इसके दो केस बनते हैं कि यदि बिजनेस कंटिन्यू किया है, ठीक है ना, यदि बिजनेस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, लीगल हेयर ने कंटिन्यू किया है तो कंप्लीट लाइबिलिटी है, जो भी उसकी पुरानी लाइबिलिटी है वो भी उसको बियर करनी है। लेकिन यदि बिजनेस डिसकंटिन्यू किया है, यदि वो बिजनेस नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे, तो उस केस में यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लाइबिलिटी का इशू है तो इसलिए पहले उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर आगे उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उस केस में अप टू द एक्सटेंट ऑफ जो एस्टेट है डिकीज की जो इनहेरिटेड करी है, वहां तक की लाइबिलिटी उनकी आती है यदि बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया है तो ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें देखना चाहिए। और एक और मैं आपको वेरियस टाइप्स जो हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का भी एक इशू है जिसको थोड़ा सा और हमें डिस्कस करना है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा।
मैंने कहा मर्जर डीमर्जर के केस में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि हम कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो जो एनसीएलटी का ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एज ए गोइंग कंसर्न आपको प्रूव करेगा कि एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। जब स्लम सेल होता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, और जो बीटीए है उस बीटीए की जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे कि वो बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न है कि नहीं, और वहां पे आप सर्टिफिकेशन करते हुए भी देखेंगे कि लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है। और डेथ ऑफ प्रोपराइटर के केस में ये सिविल लॉ है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, रीड विल, इसमें जो है नेचुरल जो सिविल लॉज है उसके थ्रू ये सक्सेशन हो रहा है। और उस केस में लाइबिलिटी की बात स्पेसिफिकली प्रोविजन जीएसटी लॉ में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अप टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट इन केस नॉट कंटिन्यू, बट इन केस इट इज कंटिन्यूड जो है वो पूरी कंप्लीट लाइबिलिटी उसकी आती है। अब देखिए डेथ ऑफ पार्टनर का जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या जो एलएलपी एक्ट है 2008 का, उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक बनती है और एलएलपी में एक एग्रीमेंट बनता है, जिसके जो प्रोविजंस होते हैं उसको लेकर के बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, अनलेस अदरवाइज इट इज कॉन्ट्रेरी टू द पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट। तो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन बाकी सारे प्रोविजन जो है वो उसमें रिलेवेंट डीड में क्लॉज में लिखे होते हैं। अब सवाल ये है कि मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई और उसमें डीड में प्रोविजन है कि दिस द बिजनेस शैल बी कंटिन्यूड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एज ए गोइंग कंसर्न। तो ठीक है, आपको नया रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम पैन नंबर है, फर्म कंटिन्यू कर रही है। आपने अमेंडमेंट करा लिया, अमेंडमेंट करा के आपने जो है अपना बिजनेस को कंटिन्यू किया। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर, पहले 3 पार्टनर का एक और केस लेते हैं, और डीड में लिखा है कि इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ पार्टनर द बिजनेस फर्म शैल बी डिसॉल्व। अब ये क्लॉज बहुत सारी पार्टनरशिप डीड में आपको मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये जो डीड्स हैं इनको हमने इतना जब बनाते समय इतना ध्यान दिया है जीएसटी का। तो यदि उसमें लिखा है फर्म शैल बी डिसॉल्व, तो फर्म डिसॉल्व होगी, और यदि फर्म डिसॉल्व होगी तो फिर टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो टैक्स लायबिलिटी आएगी तो उस केस में कैसे प्रोसीजरली हमें उसको करना है, वो एक अपने आप में चैलेंज रहता है, तो वो हमें हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ 2 पार्टनर हैं उस केस में आपके पास सिचुएशन नहीं है। 2 पार्टनर में से एक की डेथ हो गई तो टेक्निकली वो फर्म डिसॉल्व ही है, वो फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उसमें लिखा है कि the proprietor will be the partner can carry over the business as a proprietor as a going concern। लेकिन यदि उसमें लिखा भी है और नहीं भी लिखा है, दोनों केसेस में फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, और जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो लायबिलिटी वहीं अराइज हो रही है। तो बाय वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ पार्टनरशिप ये हमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे फर्म मैंडेटरली डिसॉल्व हो रही है, और फर्म डिसॉल्व हो रही है तो लायबिलिटी आपको कहीं ना कहीं एड्रेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, इनमें बड़ा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, इनके रिलेवेंट क्लॉज देखने की जरूरत है, और उसी हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए। जी पहले जो पार्टनरशिप फर्म बनी है पुरानी जितनी भी चल रही है वो सब अकाउंटेंट्स ने पार्टनरशिप डीड्स बनाई है, या फिर कहीं जाके पार्टनरशिप डीड टाइप करवा ली। वो सारी अब जो आ रही है ना, अभी मेरे पास भी कई फोन इस तरह के ही आए हैं जिसमें वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई और लायबिलिटी अराइज हो गई। तो हम जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म को देखते हैं तो सबसे पहले उसकी डीड को अमेंड कराने की जरूरत है, अगर उस डीड में वो क्लोजेस नहीं है तो। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि अभी जो हो गया है तो हो चुका है, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग में आप विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि देखिए पार्टनर की कंसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप उसमें जो लीगल हेयर है उसको लेकर के पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू करने की बात लिखें, या एज ए गोइंग कंसर्न उनको पावर दें पार्टनर्स को या एक सिंगल पार्टनर को। तो ये बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं लीगली, वो आपको एड्रेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज यदि फर्म डिसॉल्व होती है तो उसका इनडायरेक्ट टैक्स का इम्प्लीकेशन भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें एक क्वेश्चन इसमें आता है मेरा, जिसमें हम परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं बिजनेस, हमने पार्टनरशिप को मतलब हमने प्रोप्राइटरशिप को कंटिन्यू नहीं करा, लीगल हेयर कंटिन्यू नहीं कर रहे, वो अल्टीमेटली क्लोज हो गया बिजनेस, जो भी रीजन रहा उसका। तो अब हमारा उसमें जो क्रेडिट पड़ा है क्रेडिट लेजर में और कैश लेजर,
तो अब वो क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में जो क्रेडिट है, हमने सारी लायबिलिटी भी डिस्चार्ज कर दी। उसके बाद हमारा जो पड़ा है, क्या वो हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं? कैश लेजर का तो कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन क्रेडिट लेजर का क्या कर सकते हैं? देखिए, क्रेडिट लेजर का आईटीसी ट्रांसफर करने के अलावा कोई जो स्पेसिफिक प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी में, सेक्शन 18 में जो स्पेसिफिक प्रोविजन है, उसके अलावा कोई रिफंड का प्रोविजन नहीं है। वो आपका रिफंड खत्म हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा। लेकिन जो ई कैश लेजर है वो आपका टैक्स नहीं है, वो आपका कैश लेजर में है, तो उसका आप जरूर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए आईटीसी का आपको केस प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। यदि फर्म डिसॉल्व हो गई या बिजनेस क्लोज हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, तो बैलेंस जो है ई क्रेडिट लेजर का वो लैप्स हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन मेरे पास रोहित जी आए हैं मेंबर्स से। जी जी जी। उसमें एक क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चंस हैं। A taxpayer pass away, her son had GST and registration prior to her death. It was decided that the business shall be transferred to the son. Till the business was being transferred, the husband was filing the return from the deceased proprietor GSTN. Are there any consequences of doing so? In this scenario, can the ITC be transferred and GST be cancelled without intimating the JO, jurisdiction officer? देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन और सवाल ये बार बार आते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि यदि आप लीगल एयर हैं, जो भी पर्सन है, एज पर सक्सेशन एक्ट, एज पर हिंदू सक्सेशन, लीगल हेयर जो है वो एज ए गोइंग कंसर्न बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, तो द फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट। अब प्रोसीजरली क्या है कि जब आपने, मैंने आपको ये डिटेल में बताया क्योंकि पैन नंबर चेंज हो रहा है, अदरवाइज तो वैट में रजिस्ट्रेशन भी चेंज नहीं होता था, पैन नंबर। तो ये जो आप लीगल एयर बन रहे हैं, ये बाई वे ऑफ जीएसटी लॉ नहीं बन रहे। जीएसटी लॉ तो ये कह रहा है कि आप नया नंबर लोगे 30 दिन में, और जीएसटी लॉ ये कह रहा है कि आप वो कैंसिल कराओगे आरसी इन केस द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड या इन केस ऑफ डेथ। तो ये प्रोसीजरल तो आपको करना है, लेकिन देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। यदि 30 दिन के बाद कैंसिल हुआ या बाय द टाइम जो उनके लीगल हेयर हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो रिटर्न फाइल करते रहे, तो देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट, बट फॉलो द सेक्शन 22 सबसेक्शन 3, फॉलो सेक्शन 29 एंड फॉलो सेक्शन 25 so far as the procedure for registration and cancellation is concerned. जैसे आपने बोला 30 दिन के अंदर हमारे को लेना जरूरी है। अगर हम 30 दिन के अंदर नहीं ले रहे, डिले हो गई किसी भी वजह से, क्योंकि उस टाइम आप मेंटल स्ट्रेस इतना होता है, आदमी डिसाइड ही नहीं कर पाता करना क्या है, क्या होगा, तो क्या वो कोई जो लायबिलिटी है इसमें नॉन रजिस्ट्रेशन की विद इन टाइम लिमिट, क्या वो लगेगी? देखिए, टाइम लिमिट तो है, मैंने आपको बताया, ऐसा कहीं कोई केस नहीं है इन माय व्यू कि यदि आप 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन लेंगे तो डिपार्टमेंट कैन से दैट इट इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। वो ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न तो सिविल लॉ में हो गया, और वो एज ए गोइंग कंसर्न होगा। हाँ, उसका आप प्रॉपर मैपिंग आप करेंगे, और 30 दिन तक जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तब तक आपको जो जीएसटी के बेनिफिट्स हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो बिजनेस आपका स्टैंड रह सकता है, हर्डल आ सकती है, आपकी इनवॉइसिंग में दिक्कत आएगी, आपके परचेज में दिक्कत आएगी, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। मुझे इसी क्वेश्चन से जुड़ा एक सवाल मेरे को उसमें आ रहा है माइंड में कि आपने बोला इलीगल नहीं है अगर वो बिजनेस कर रहा है, उसका जो हस्बैंड है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन क्या जो इनपुट आ रहा है क्या वो हमें मिलेगा? हमने आउटपुट लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी, इट्स ओके, लेकिन क्या इनपुट हमें मिलेगा? क्या वो डिनाई नहीं हो सकता? फैक्ट ये है लीगली, यदि आप मुझे स्ट्रिक्ट सेंस में बोलें तो दैट बिजनेस इज कैरीड ओवर एज ए गोइंग कंसर्न। वो बिजनेस चल रहा है, वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, वो बंद नहीं हुआ, वो बिजनेस चल रहा है। लेकिन यदि आप प्रोसीजरली बात करेंगे तो वो गलत है, क्योंकि वो पैन नंबर दूसरे के पे बिजनेस चल रहा है जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू है और उसके बेनिफिट सारे उसको मिलने चाहिए। एज ए गोइंग कंसर्न बिजनेस चल रहा है, तो देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट कि यदि ड्यूरिंग द पीरियड कोई आईटीसी आ गया या कुछ और आ गया तो उसको आपको प्रॉपर बेनिफिट डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। हाँ, अगर उस केस ये है, एक और मैं आपको एक्सट्रीम केस डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है कि आपने 1 महीना पुराने फॉर्म में ही लीगल हेयर ने बिजनेस कर लिया और करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया और वो पैन नंबर में चला गया, आईटीआर फाइल करते हुए वो टर्नओवर जो है डेथ के जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसके केस में रिफ्लेक्ट हो रहा है।
तो कल को आपको क्वेश्चन आ सकता है तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि देखिए दिस वाज ए बिजनेस ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न, आई एम द लीगल हेयर, ये मैंने अपनी आईटीआर में दिखा दिया है, ये टर्नओवर उसकी डेथ के बाद का है। तो दिस इज द प्रोसीजरल, ये जो डिफिकल्टीज ग्लिचेस यू विल बी फेसिंग। तो आई एडवाइज कि यू डू नॉट do the business in the existing firm. As soon as possible you apply for the new registration, but even if this situation is arising, you can handle this with the department. अगर हम इसको गोइंग कंसर्न की तरह ले जाएं आगे, अगर ट्रांसफर कर देते हैं, लेट करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन अगर हम उसको नहीं करते, सपोज करो कि वो हस्बैंड बिजनेस चला रहा है, 2 महीने चलाया, 3 महीने चलाया, फिर उसने क्लोज कर दिया बिजनेस, तो उस केस में सेम लायबिलिटी रहेगी, एज ए गोइंग कंसर्न ट्रीट होगा, या वो जो हमने इनपुट लिया है वो डिनाई होगा, हाँ आउटपुट लायबिलिटी को पेमेंट करनी पड़ेगी? देखिए नटशेल में क्या होगा आपके केस में, यदि बिजनेस नहीं चला रहे हैं तो जब तक जीएसटी लायबिलिटी जिस पे पे हो गई उस पे तो डिपार्टमेंट दोबारा लायबिलिटी नहीं मांग सकता। जो टर्नओवर सेल हुआ और उस पे उन्होंने आउटपुट टैक्स पे कर दिया, सवाल ये है कि जिस दिन डिसकंटिन्यू हुआ उस दिन स्टॉक कितना था। आप मनमोहन जी स्टॉक और एसेट को देखिए, वो है कंसर्न डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। मान लो खोखा बिजनेस है जिसके पास स्टॉक ही नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, आप छोड़ दो ना ये बात गुड्स की। एक कंसल्टेंट है, अब कंसल्टेंट का बिजनेस क्या एज ए गोइंग कंसर्न कैरी ओवर होगा, या सप्लाई ऑफ सर्विस है जहां पे स्टॉक ही नहीं है, ठीक है, और एसेट ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यदि जो ड्यू टैक्सेस है वो पे हो गए हैं तो डिपार्टमेंट विल नॉट ऑब्जेक्ट, भाई टैक्स पे हो गए। हाँ, इनकम टैक्स की जो ग्लिचेस आएंगी वो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी, मैंने आपको बताया, क्योंकि वो पेन बेस्ड है, कंपल्शन। देखिए क्या है, जीएसटी इज पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, तो प्रैक्टिकली आपको दिक्कत है। और लॉ भी कह रहा है, सेक्शन 29 कह रहा है आप पुराने को सरेंडर करिए, सेक्शन 22 कह रहा है आप नया लीजिए, 25 कह रहा है आप 30 डेज में लीजिए, तो आप उन रूल को फॉलो करिए। दिस इज व्हाट द लॉ वांट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारे पार्टिसिपेंट से ही, ये ई वे बिल के से रिलेटेड है थोड़ा सा। A supplier of the deceased taxpayer who was not aware about his death dispatched the goods to the taxpayer, made e-way bill accordingly. The taxpayer's son took over the business in the running and registration was granted from the next day of the death of the proprietor. What are the possible options available to the supplier with respect to the supply? ये तो कंटिन्यू बिजनेस है मेरे हिसाब से, वो तो कंटिन्यू रहेगा। जो ई-वे बिल उसके नाम से बन गया वो क्योंकि गोइंग कंसर्न है तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। मुझे इसमें लग रहा है क्वेश्चन में जो चैलेंज जिन्होंने पूछा है वो ये है कि देखिए जो इनवॉइस सप्लायर ने रेज किया वो पुराने रजिस्ट्रेशन पे रेज किया, जो फर्म अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब डेथ के बाद। और जो नया बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन उसमें आईटीसी कैसे आएगा, ठीक है ना। तो उसके आईटीसी के लिए, क्योंकि गुड्स मूव हो गया है पहले, उसके आईटीसी के लिए तरीका ये है कि जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट बना के उस बिल को नॉक ऑफ करे और नया इनवॉइस बनाए नए फॉर्म के नाम पे। और उस केस में ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। एक तरह से वो पुरानी फॉर्म से गुड्स रिटर्न हो गया वहीं के वहीं और नई फॉर्म में इनवॉइस बन गया, और आप उस नई फॉर्म में आईटीसी कैरी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इज। एक दो क्वेश्चन चैट क्वेश्चन आंसर सेशन में आए हुए हैं, आप कहें तो उसको हम ले सकते हैं। आए हुए हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपको, मैं पढ़ देता हूँ। अखिलेश कुमार गर्ग जी का क्वेश्चन है ये, how to two existing GST number of two sons of deceased proprietor can be mapped and how ITC of proprietor can be distributed in two parts। वो हमने डिस्कस किया था अभी, जैसे अलग अलग वाला उसी से रिलेटेड है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। देखिए ऐसा है कि दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर, है ना। तो एज ए गोइंग कंसर्न पहली बात तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये बिजनेस जो दोनों में ट्रांसफर हो रहा है ये गोइंग कंसर्न है। ये अपने आप में चैलेंज है कि एक बिजनेस दो जनों में एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो रहा है क्या। यदि सपोज हो रहा है तो उस केस में जब आप आरसी सरेंडर करेंगे तब आप उसको मैप कर दीजिए जो दोनों रजिस्ट्रेशन हैं उनसे। दूसरा, आप राइटिंग में प्रॉपर ऑफिसर को ये सारे फैक्ट्स लिख के विद डेथ सर्टिफिकेट एंड जो दोनों रजिस्ट्रेशन हैं वो आप उनको दीजिए। ITC 2 जो है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में 2 फाइल हो सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट, वो आप कर सकते हैं। हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कि बस इम्पोर्टेंट ये है कि गोइंग कंसर्न है, दो अलग अलग बिजनेस है, दो अलग अलग टाइप की मतलब शॉप्स अलग अलग है, फैक्ट्री अलग अलग है, एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग है। इस तरह का हमें गोइंग कंसर्न बनानी पड़ेगी उसको,
और क्योंकि इसके लिए कोई प्रैक्टिकल हर चीज का सॉल्यूशन लॉ में नहीं होता, तो इसलिए आपको राइटिंग में ही जाना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर के पास अपने फैक्ट्स मेंशन करते हुए। एक क्वेश्चन है राजेंद्र कुमार जी धींगरा जी का, वन ऑफ द लीगल हेयर इज ऑलरेडी अथॉराइज्ड सिग्नेटरी इन द फर्म, does he need to get appointed as temporary authorized signatory, or he may be do the compliance by virtue of being the existing authorized signatory? वो तो कर देखिए, सकते हैं। आपको ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि भले ही आप पुरानी फर्म का कंप्लायंस कर रहे हैं, बट यू शुड बी एडेड एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी, तो वो आप ऐड कर लीजिएगा जरूर, विद द रिक्वेस्ट टू द प्रॉपर ऑफिसर, और जैसे भी या ऑनलाइन कर सकते हैं तो उस तरीके से। एक क्वेश्चन गोपाल जी अग्रवाल जी का है, आफ्टर डेथ ऑफ ए प्रोप्राइटर कैन हिज सन कंटिन्यू द सेम बिजनेस बाय जस्ट एडिंग हिमसेल्फ एज अथॉराइज्ड सिग्नेटरी, एंड हाउ लॉन्ग? नो नो, ये तो नहीं हो सकता, देखिए सेक्शन 25 22(3), ये डिसॉल्व हो जाएगी। section 29(3), 29(5), you the person has to legal heir has to take the new registration। और how long का तो मैंने आपको बताया, there is nothing illegal, but 30 days तक तो लॉ ही कह रहा है, तो यदि 30 days तक आप कर रहे हैं तो there is nothing illegal about it। एक क्वेश्चन सुनील जी का है, सर वन ऑफ द टू पार्टनर्स फादर एंड सन ऑफ ए सीए कंसल्टेंसी फर्म dies, if the is it mandatory to transfer running business of supply of services to legal heir son, even as existing business does not cross the taxable threshold limit? The partnership firm stand dissolved and son is not interested to take over the dissolved firm. What is the advisable legal provisions under GST law? ये तो देखिए क्वेश्चन खुद ही आंसर है इसमें, आप देखेंगे हाँ, कि जब फर्म डिसॉल्व ही हो रही है, जब दो पार्टनर हैं और एक की डेथ हो गई, और एक की डेथ के बाद फर्म डिसॉल्व हो गई, तो आप उसको डिसॉल्व करके उसको सरेंडर कर दीजिए नॉर्मल, और जो जिसने प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना है वो अपना नया नंबर ले ले। व्हाई यू वांट टू ट्रांसफर द बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न? देयर इज नो नीड। थोड़ी बहुत एसेट्स की जो टैक्स इंप्लीकेशन आएगी वही वो आएगी। आपको देखना पड़ेगा। यस। एक और क्वेश्चन है सुनील जी का, is it sufficient to surrender old registration by paying off the net liabilities? हाँ देखिए, यदि आप लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट को और क्या चाहिए। in case of death, जो up to the extent of estate inherited, जो आपके पास आया वहां तक की लाइबिलिटी है, और यदि आप उसकी लाइबिलिटी पे करके खत्म कर देते हैं तो बात इशू क्लोज हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी फर्में हैं जहां पे बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा, और बहुत सारे केसेस में स्टॉक भी नहीं है, तो उन केसेस में इशू नहीं है। पर जहां पे देखिए बहुत स्टॉक है और एक लाइवली बिजनेस है, उन केसेस में बहुत एक सीरियस कॉल लेने की जरूरत है, और बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की वजह से हम लोगों ने बीवीएसएस में भी रिप्रेजेंटेशन भी दिया, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हम लोगों ने कहा, मिनिस्ट्री को कहा। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि नए रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई हो रहे हैं इन केस ऑफ दिस आफ्टर डेथ ऑफ द प्रोपराइटर, उसमें भी डिपार्टमेंट सारी वो इस फॉर्मेलिटीज कर रहा है, और कई केसेस में तो वो कह रहे हैं हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। अब देखिए बिजनेस सारा सफर हो रहा है, जहाँ पे डेथ का केस है वहां पे जो पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसी के बेस पे रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए, क्योंकि वही एड्रेस प्रूफ सफिशिएंट है जो आरसी है। अब गवर्नमेंट को एक सर्कुलर इशू करने की जरूरत है, क्योंकि क्या है कि इन केस ऑफ डेथ इमीडिएट सारे डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल होते नहीं है, कहाँ नया ओनरशिप का डॉक्यूमेंट आएगा नए के नाम पे। अब जिसकी डेथ हो गई वो ओनर था, अब एनओसी कौन देगा, है ना? या ओनरशिप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो तो उसके नाम पे है जिसकी डेथ हो गई। अब डिपार्टमेंटल ऑफिसर कहे हम तो रजिस्ट्रेशन नहीं देते क्योंकि आपके पास ऑक्यूपेंसी का प्रूफ नहीं है। तो दिस इज नॉट ए गुड कंडीशन, गुड सिचुएशन। तो इन केस where there is a transfer of business due to death, in those cases or transfer of business cases, the new registration should be leniently given without going into the further documentation based on the registration which is there in the name of the deceased person। तो ये एक इशू उसमें से निकल के आ रहा है। और अब एक आता है कि क्या सीक्वेंस हम फॉलो करें। यदि आप सीक्वेंस की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला काम है कि आप नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दीजिए डेथ के बाद लीगल हेयर के नाम पर। और जब आप नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें तो मैं आपको एक मिनट शेयर भी करता हूँ रिलेटेड जो
एक सर्कुलर इशू किया गवर्नमेंट ने, उस सर्कुलर 96 में, उसमें जो है उन्होंने इस वाले इश्यूज को क्लेरिफाई किया। तो पहली बात तो उन्होंने क्लेरिफाई किया कि ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ द बिजनेस विल इंक्लूड ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस ड्यू टू दैट ऑफ द सेल्फ प्रोप्राइटर। तो बेसिकली ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो आपको ये देखना है जहां पे बिजनेस कंटिन्यू है वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है वहां पे डिसकंटिन्यूएंस है। तो थोड़ा सा ये एक आपको देखना है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज क्लैरिफाई की कि रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी जो है सक्सेसर की वो क्या है। तो वो REG1 फॉर्म भरेगा, और REG1 फॉर्म भरते हुए जो वो रीजन है वो रीजन देगा डेथ ऑफ द प्रोपराइटर। तो रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो डेथ ऑफ द प्रोपराइटर आएगा, तो वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो गया एक तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए REG में एक कॉलम में पूछता है व्हाट इज द रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप डेथ ऑफ द प्रोपराइटर इफ द सक्सेसर इज नॉट ए रजिस्टर्ड एंटिटी। यदि सक्सेसर के पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप नया तो लेंगे नहीं, तो फिर इस फॉर्म को भी भरने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ ले लेंगे। लेकिन डेथ के अलावा और केस हैं तो उसके अलग कॉलम है। देखिए एक कॉलम है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस विच इंक्लूड चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस, यानी कि जहाँ पे BTA है, और नीचे एक चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस अलग से भी है। तो आपको अप्रोप्रिएट जो हेडिंग है वो आपको चूज करनी है। फिर एक और उन्होंने कहा कि भाई जो पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, तो पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हुए जो रीजन आप लिखेंगे वो डेथ ऑफ प्रोपराइटर लिखेंगे, और जो नया रजिस्ट्रेशन लिया है आपने उसको मैप कर देंगे उसमें। तो सेकंड केस में क्या होगा, पहले तो आप ITC ट्रांसफर कर लेंगे ITC 2 से, और फिर उसके बाद जब सरेंडर करेंगे तो देखिए डेथ ऑफ सेल प्रोपराइटर आप रीजन सेलेक्ट करके, और नीचे जो इन केस ऑफ ट्रांसफर मर्जर बिजनेस है उस केस में आप नया रजिस्ट्रेशन जो है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन करके आप उसमें डाल देंगे, तो वो नया रजिस्ट्रेशन नंबर वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप एक उसमें नया रजिस्ट्रेशन डाल देंगे। उसके बाद फिर एक ITC का ट्रांसफर आया, तो ITC के ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 18(3) में है, रीड विद 8593 जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ट्रांसफर हो सकता है, और उसको ट्रांसफर करने के लिए ITC 2 आपको फॉर्म भरना है, और वो कैंसिलेशन से पहले भरना है। यानी कि वैसे तो कैंसिलेशन के बाद भी कोई डिनायल नहीं है, क्योंकि जब तक कैंसिलेशन नहीं हो रहा तब तक आप उनको कर सकते हैं, बट दे हैव क्लैरिफाइड कि बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन आप ITC 2 भर दीजिए। और ITC 2 जो है ट्रांसफर की फॉर्म, यानी कि जो लीगल हेयर है वो ऑन बिहाफ ऑफ द डिकीज वो फिल करेगा, और वहां से ITC यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और ये ITC 2 का फॉर्म है जिसमें ट्रांसफरर की डिटेल और ट्रांसफरी की डिटेल है, और अमाउंट ऑफ ITC जो है जो ट्रांसफर होना है। तो डेथ ऑफ प्रोपराइटर के केस में जनरली पूरा 100% जो ITC है वो ट्रांसफर होता है, और साथ में एक सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है CMA-CA की। तो उसमें आपको सारे फैक्ट्स मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे ये सर्टिफाई करेंगे कि यहाँ पे लीगल हेयर कौन है, या फिर आप ये कैसे सर्टिफाई करेंगे कि सारी लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो रही है। तो लायबिलिटी तो बाय लॉ ही ट्रांसफर हो रही है डेथ के केस में। तो यू रेफर सेक्शन 93, यू रेफर द डेथ सर्टिफिकेट एंड टेक ए डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन आप ले लीजिए जो लीगल हेयर है उससे, कि आई एम द सोल लीगल हेयर इन केस ऑफ सक्सेसर इन बिजनेस, और उस डिक्लेरेशन के बेस पर के आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या हुआ कि पहले आपने REG1 भरा नया रजिस्ट्रेशन, फिर आपने ITC 2 ITC ट्रांसफर किया, और उसके बाद आपने REG16 जो है वो आपने भरा, और इस केस में इस तरह से आपने हैंडल किया। ओवर टू मनमोहन जी। एक इसमें ना ITC 2 में क्वेश्चन था मेरा, अभी हमने ITC 2 की बात की, इसमें जो हम ITC का कॉलम है, कॉलम नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है सेकंड जो टेबल है उसमें सेकंड कॉलम है अमाउंट ऑफ मैच्ड ITC अवेलेबल। तो ये मैच्ड ITC वो है जो 2A में मैच हुआ है। देखिए क्या है कि अब आपने 3B में ITC ले लिया, और 3B में तो अभी तक तो चलिए अब तो 2B आ गया, नहीं तो 3B तो एक ओपन, जिसे कहना चाहिए ना कि ब्लैंक चेक, जितना अमाउंट चाहिए भर लो। अब आपने साइन करके दे दिया, जो मर्जी डाल लो। तो आपने जो मर्जी डाल लिया, तो वो ITC आपके क्रेडिट लेजर में खड़ा हो गया। तो वो एलिजिबल ITC है कि नहीं वो कहना चाह रहे हैं, पर ये बड़ा डिफिकल्ट है। हाउ यू विल डू दिस, यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड आप उसमें नीचे डिस्क्लेमर डाल दीजिए, सब्जेक्ट टू रिकंसिलिएशन विद 2A, दैट वी कैन नॉट ओन विद अस
whether this particular ITC is reflected in GSTR 2A 2B. अपने CS सर्टिफिकेट में डाल देना। हाँ, और वो तो एक देखिए क्यूमुलेटिव अमाउंट है, कंटिन्यूइंग अमाउंट है। जो बैलेंस बचा है वो कौन से इनवॉइसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कैसे होगा? वो तो एक बिकम्स ए पार्ट ऑफ द हॉच-पॉच बिजनेस चला रहा है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। भाई ये तो डिपार्टमेंट ने डाल दिया, लेकिन हाउ द चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन सर्टिफाई कि ये जो अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये वही वाले इनवॉइस है? डिपार्टमेंट कहेगा ये वही वाले हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, और आप कहोगे ये वही वाले हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम तो कहेंगे जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो ये है, बाकी जो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे थे वो ले लिया उसने ऑलरेडी। आप सर्टिफाई मत करिए इस चीज को, वो डिपार्टमेंट देखेगा। और कोई क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन आया हुआ है सुनील जी का, इज इट सफिशिएंट टू सरेंडर ओल्ड रजिस्ट्रेशन बाय पेइंग ऑफ द नेट लायबिलिटी? ये तो आंसर हमने किया था, यस, आपने शायद ले भी लिया था। मैं कर लिया था ये। मेरी एक छोटी सी क्वेरी है, इफ यू परमिट, मैं पूछना। हाँ हाँ सर जी, जैसे जो जिसकी डेथ हुई है उसकी हम 3B लास्ट फाइल होगी जिसमें वो स्टॉक ट्रांसफर करेगा टू द ट्रांसफर, चाहे वो सक्सेसर हो, वो एग्जाम सप्लाई में दिखाएगा। उसमें वैल्यूएशन क्या डालेगा, चाहे वो स्टॉक है या एसेट है, बुक वैल्यू ले ले या कैसे करे इसको? ये प्रैक्टिकल वे को करना है किसी का भी, तो इसलिए दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो फिर एग्जाम सप्लाई दिखाए नहीं हम 3B के अंदर? एग्जाम सप्लाई गुड्स की नहीं है, आप जो दिखा रहे हो वो सप्लाई नहीं है, सप्लाई तो बिजनेस की है। बिजनेस की वैल्यू तो जो कैपिटल है वो होती है, या तो आप प्रोपराइटर की कैपिटल डालोगे वैल्यू में। इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, डोंट शो इट। तो डोंट शो इट, ठीक है, फाइन, यही था भाई। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं और ये आपको हेल्प करेंगे। कहीं लॉ में इस तरह की चीजें नहीं लिखी हुई कि आपको क्या करना है। अब इशू तो मैं 4 इशू यहाँ पे मैं भी रेज कर सकता हूँ, और जिनके बारे में आंसर बहुत नहीं है शायद, क्योंकि जब एग्जाम सप्लाई होती है तो आईटीसी का रिवर्सल भी होता है। अब जो आईटीसी पढ़ा है क्या उसका भी रिवर्सल होगा? है, उसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। अरे भाई, रिवर्सल तो होता है मंथली बेस पे। अब जिस महीने में आपने बिजनेस ट्रांसफर किया, सपोज उस महीने में आईटीसी है ही नहीं, तो किस चीज का रिवर्सल होगा? और जब बिजनेस एज ए होल जा रहा है तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रिवर्सल? बिजनेस मतलब यू आर जस्ट टेकिंग फुट ऑफ द डिकीज पर्सन। तो वो ही सारी चीजें आपको अवेलेबल होनी चाहिए बिजनेस में जो उसके पास थी। ये लॉजिक है। ठीक है। और किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में डाल के, या मनमोहन जी रेज करके भी पूछ सकते हैं। हाँ मनमोहन जी, चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेरीज हैं, तो हम क्विकली उनको भी ले सकते हैं। हाँ, 2-3-5 मिनट ले सकते हैं आप फिर उसके बाद। चैट बॉक्स में विपिन जी भी है, यदि वो कुछ जोड़ना चाहें और इस डिस्कशन में तो जोड़ सकते हैं। हाँ, जीएसटी में एक्सपर्ट हैं, जीएसटी में काम करते रहे, हम लोगों ने बहुत सीखा है। और जब से जीएसटी ग्रुप शुरू हुआ, मुझे याद है विकास मार्ग सीए स्टडी हमने सारे हम मिले थे, और तब इतना इनडायरेक्ट टैक्स में आपका इंटरेस्ट रहता था। तो विपिन जी, ये जो आज का डिस्कशन है, इसमें कोई कंसर्न आपको नजर आ रहा है तो आप भी अपनी बात मेरे को तो, मैं तो कह रहा हूँ एक्चुअली जो वेबिनार होने चाहिए होने इसी तरह से होने चाहिए। दिस इज द वे एक्चुअली we are able to see your PPTs also and able to solve the questions also, क्योंकि बेसिकली तो क्वेश्चंस है ना जिनके आंसर चाहिए सबको। तो थ्रू द पीपीटी, बाय अंडरस्टैंडिंग लॉ, बाय say correlating the law and procedures, we are able to understand. I think this is the way। बाकी तो सबकी जैसे कंसेंट होगी, तो मेरे को तो अच्छा लगा कि ऐसे ही करने चाहिए हमारे को। एक केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का किसी ने रेफर किया था, सबीना इब्राहिम वाला, वो शायद क्वेश्चन आपने, तो वो ऑनरेबल जस्टिस ए.के. सीकरी और नरीमन का जजमेंट था एक्साइज लॉ के ऊपर, कि भाई जो जब स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है एक्ट में, तो जो सक्सेसर है उससे आप लायबिलिटी रिकवर नहीं कर सकते बिजनेस की, इवन इफ द सक्सेसर मे हैव टेकन ओवर द एस्टेट आल्सो, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक। लेकिन अब आप ये देखें कि देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन इन द जीएसटी लॉ, देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन, देयर वाज एक्साइज में भी आ गया था, सर्विस टैक्स में, और इनकम टैक्स में भी बिल्कुल स्पेसिफिक प्रोविजन है रिकवरी के, सारे मशीनरी प्रोविजन है। तो व्हेन वी आर हैविंग द मशीनरी प्रोविजन इन द जीएसटी लॉ, to my mind this judgment should not be applicable in case of GST, and although in case of transfer of business, अच्छा हुआ वो याद आ गया, सेक्शन 85 वो हमने रेफर नहीं, उस केस में तो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है। यदि नॉर्मल बीटीए है, अब बीटीए में ये एक बड़ा चीज है
चैलेंज है। देखिए, जब स्लम सेल हो गई तो स्लम सेल में लाइबिलिटी क्लॉज एग्रीमेंट में ही होता है। अब लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लाइबिलिटी अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, उस केस में ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल है, ट्रांसफर एंड ट्रांसफर स्पेसिफिकली लिखा है। तो बीटीए भी करते हुए बड़ा सोचना, जब आप बीटीए कर रहे हैं और जीएसटी रिजाइन में, तो यू मस्ट कंसीडर सेक्शन 85। आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना पड़ेगा कि आप बीटीए करना चाहते हो कि रादर आप अला कार्टा परचेज करना चाहते हो एसेट्स को, क्योंकि अला कार्टा परचेज करते हो तो लाइबिलिटी नहीं कैरी ओवर होती, बिजनेस परचेज करोगे तो लाइबिलिटी साथ में आएगी। और लाइबिलिटी साथ में आपने भले बीटीए में लिख दिया कि भाई अप टू द ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर की लाइबिलिटी है, और आपका बिजनेस चल रहा है तो जो जीएसटी अथॉरिटीज है वो तो चलते हुए बिजनेस के पास ही आएंगे रिकवरी करने। जो बेच के चला गया उसके पास कौन रिकवरी करने जा रहा है? तो बीटीए में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 85, जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। तो ये चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज हैं, मनमोहन जी इनको ले सकते हैं? नहीं, वो चैट बॉक्स वाली क्वेरीज मैंने कर ली थी। अच्छा, आपने ले लिया। कर ली है सारी क्वेरीज। पहली क्वेरीज मैंने विजय जी की करी थी कि डेथ सर्टिफिकेट उससे लगाने लगाना, रोहित जी ने बता दिया, लगा दे, अच्छा रहता है, डेथ सर्टिफिकेट लगाना ही चाहिए। ठीक है। और एक था कि व्हाट हैपन इफ विद इन 30 days ऑफ द सक्सेशन प्रोसीजर इज नॉट कैरिड आउट, तो वो भी रोहित जी ने एड्रेस कर दिया था कि उसमें ऐसा कोई इलीगल नहीं है, कर सकते हैं, बाद में भी हो सकता है वो। देखिए, एक केस में हमने क्या किया, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सक्सेशन सर्टिफिकेट तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ दिस इज ए अर्नेस्ट रिक्वेस्ट फॉर द सीबीआईसी टू इशू ए सर्कुलर रिगार्डिंग दिस, क्योंकि जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन है उसके एडिशन ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी और उसकी रिटर्न्स, उसके सरेंडर के ऊपर ईज के लिए, दूसरा नए रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी। अब क्या होता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट तो इतनी जल्दी आता नहीं है, कोर्ट से आपको लेना पड़ता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट में एप्लीकेशन जाती है, जहां पे रिक्वायर्ड है, जहां पे विल है वहां पे एक अलग इशू होता है। तो जनरली क्या है, आप एक एफिडेविट बनाएं, और जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है या जो ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड हो रहा है, वो एफिडेविट में ये सारे फैक्ट दे कि सो एंड सो फादर या जो भी मदर है उनकी डेथ हुई, आई एम द लीगल हेयर ऑब्लिक सक्सेसर इन बिजनेस, एंड आई सोलमनली डिक्लेयर दैट आई विल बी लायबल फॉर ऑल लायबिलिटी, एंड द कंटेंट्स ऑफ द above are true and correct to the best of my knowledge। आप एक एफिडेविट बनाएं, उसको साथ में लगाएं, तो दे विल ऐड यू एज ए सिग्नेटरी और फॉर ए न्यू रजिस्ट्रेशन। तो एक डिक्लेरेशन एफिडेविट जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो डिपार्टमेंट को भी क्या पता कि हु इज द सक्सेसर, हु इज द लीगल ओनर। ये एक अपने आप में इशू है। एक सुनील जी की क्वेरी और आई है, सर फाइलिंग द फाइनल रिटर्न, all pending returns and net tax liability can be done only through obtaining the succession certificate from the court. Does the surviving partner, who is the sole legal heir, still liable to obtain new registration or apply to proper officer through inclusion as authorized signatory? जब आप फाइनल रिटर्न की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब तो गोइंग कंसर्न है ही नहीं, या गोइंग कंसर्न के केस में दोनों में हो सकता है। आप यदि किस चीज की बात कर रहे हैं ये एक इम्पोर्टेंट है। तो यदि तो आप फाइनल रिटर्न फाइल करने की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, आप ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड हो जाइए और फाइनल रिटर्न भी फाइल कर दीजिए, और लास्ट रिटर्न जो अपना 3B है वो भी फाइल कर दीजिए, है ना। डज द सर्वाइवर पार्टनर हु इज द सोल लीगल हेयर स्टिल लायबल टू ऑब्टेन, नहीं, न्यू रजिस्ट्रेशन तो तब है जब आप बिजनेस करोगे। एक क्वेरी राजेश सलूजा की आई है। राजेश सलूजा की एक क्वेरी है, वी कैन इंस्टीड यूज सर्वाइवर सर्टिफिकेट और ए लीगल हेयर सर्टिफिकेट व्हिच इज इजियर एंड क्विकर टू गेट। देखिए, लीगल हेयर सर्टिफिकेट जो लोकल अथॉरिटीज देती हैं, स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो इजी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन लीगल हेयर का पर्पस अलग भी होता है, क्योंकि वहां पे बेसिकली इनहेरिटेंस के प्रोविजन है। तो आप लीगल हेयर ले सकते हैं तो जरूर लीगल हेयर ले लीजिए। यदि आपके पास विल है तो विल की कॉपी लगाकर भी आप काम चला सकते हैं, अदरवाइज आप डिक्लेरेशन से भी काम चला सकते हैं, और आपको वेट नहीं करना चाहिए सक्सेशन सर्टिफिकेट का। तो दैट इज द केस, ये दैट यू कैन डू। तो एसडीएम ऑफिस से मिल जाता है शायद। यस यस यस, ये आसान है लेना, आसान है। So I think we have taken all the queries and questions from the question answer box as well as chat box, and really it was a मनमोहन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और जी, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का, तो और इतना बढ़िया से हमारा कन्वर्सेशन और डायलॉग हुआ है।
Yes. हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहे तो अच्छा है। बाकी मेंबर्स बताएंगे कि मेंबर्स को अच्छा लगा, आगे इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर जो पहले चल रहा था उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये मेंबर से भी क्वेरी अभी आएंगी तो पता लगेगा। रियली इट वाज ए वंडरफुल एंड वेरी नॉलेजेबल इंटरेक्शन। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आज हमारे बीवीएसएस के प्रेसिडेंट विपिन अग्रवाल जी तो वास्तव में बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो यही चाहते थे कि हम ऐसे क्वेश्चन आंसर बेस्ड और डायलॉग बेस्ड सेशन रखें, ना कि टिपिकली पीपीटी बेस्ड हम लॉ पढ़ें। सो थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशन कि आपने चाहा और मनमोहन जी ने सपोर्ट किया। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा रियली। और थैंक्स टू रोहित जी कि उन्होंने अपने लिमिटेड टाइम में ना बहुत डेप्थ में जाके पूरा सेशन कवर किया। और मुझे लगता है कि उनकी पीपीटी में भी जो भी कुछ है वो भी शायद ऑलमोस्ट कवर हो गया, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर हो गए। सो it was a wonderful session, and now for the final vote of thanks I request the co-convener of BVSS GST Group, C. Astha Gupta. So please. वेरी गुड इवनिंग। जैसे सभी ने कहा, संजय जी ने कहा, विपिन जी ने कहा, ये बहुत अच्छा था। मतलब हमने पहली बार शायद फॉर्मेट ट्राई करा है कि इसमें हमारे पास पीपीटी बेस्ड भी था, प्लस वी हैड इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन आल्सो। तो आई थिंक ये हाइब्रिड मोड हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर वेबिनार्स के लिए, तो सबको मतलब बेनिफिट भी रहेगा इसके अंदर। एंड आई थिंक ये टॉपिक इतना रेलिवेंट है इस टाइम पे, इतनी अनटाइमली डेथ्स हुई हैं और कोई मतलब एंटिसिपेट नहीं कर पाया था, तो इसलिए प्रैक्टिकली काफी ये कनेक्ट कर पाएंगे लोग इस टॉपिक के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक नवजोत सिंह कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे ही जस्ट केम अबॉर्ड एंड बहुत अच्छा से उन्होंने प्रेजेंट करा। एंड नॉट ओनली द टाइमलाइन, फोकस ऑन द रेलेवेंट अमेंडमेंट्स, जो मतलब आए दिन में, क्योंकि इतनी सारी अमेंडमेंट्स थी, हम सब पे फोकस नहीं कर पाते ड्यू टू आवर वर्क एंड ऑल, सो नॉट इट्स लाइक अ रिफ्रेशर कोर्स। सो थैंक यू नवजोत, एंड होप टू सी यू इन फ्यूचर वेबिनार्स एज वेल and be associated with BVSS. And secondly, I would like to thank Rohit ji for such detailed deliberation. और बहुत quickly आपने सारे queries answer करे, एकदम to the point, crisp. And सब members को भी मैं thank you करना चाहूँगी जिन्होंने सब questions contribute करे और इतना content दिया. And मनमोहन जी, thank you for moderating the session. बहुत अच्छे से आपने handle करा, and timeline को हमने थोड़ा सा cross किया, but I think इतना तो हम लेके चलते हैं buffer. And संजय जी को भी मैं थैंक यू कहूंगी कि आपने ये पूरा सेशन प्लान करा और ये टॉपिक्स लेकर आए जो रेलेवेंट है इस टाइम पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेसिडेंट सी विपिन अग्रवाल जी, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस एंड गाइडिंग अस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो विद दिस आई वुड टेक योर परमिशन टू क्लोज द सेशन। Yes, thank you everyone. Thank you everyone. everyone. Thank you. Thank you.